Okay, let's start with today's session. Good evening, everyone, and a very warm welcome to today's special webinar that TradeSmart Securities has hosted. My name is Nicholas Montero, and I am working as a product evangelist for TradeSmart. For those of you who don't know about TradeSmart Securities, we have been in this business for close to 30 years now, and our office is located in Marul. Okay, we are currently serving a growing customer base of more than 2 lakh traders across India. Great. At TradeSmart, our focus has always been on making trading simple, affordable, and transparent for traders. So, as part of this effort, we regularly bring in experienced market professionals so that they will share their practical knowledge that can genuinely help people and so that you all understand the markets better. So, today we are delighted to have with us a well-known and respected person from the Indian trading community. We welcome Mr. Hemanth, founder of Wise Investing. He has over 15 Yes. years of experience in the markets. So, Mr. Hemanth has spent several years observing the Indian markets, and his major focus has always been on price action, open interest, and market psychology. Uh, Yes. Apart from being an active trader and an educator, he is also an author. He has written multiple books, and two of them are The Smart Trader's Playbook and The Logic of Trading and Investing. Both of these books are available on Amazon and Flipkart as well. So you guys can check it out. And what truly sets his approach apart is how simple his process is. So Mr. Raymond Mhm. doesn't use much indicators or trend lines and all. He keeps the process very simple, a very clear understanding of the markets. Okay, so in today's session, we'll be exploring how Mr. Hemant makes use of this simple but effective process with a Yes. combination of few easy to use indicators like RSI and MACD and chart patterns. Because chart patterns, again, many people are interested. Yes. Okay, Yes. so Yes. we are Yes. really excited so that Mr. Hemant will share his insights with you guys and hope you enjoy this session. So let's start off with Mr. Hemant. Thank you so much, Nicholas. Thank you so much for your introduction. And first of all, I would like to ask many people at this place right now, जो भी लोग हैं यहाँ पे, कौन से लैंग्वेज में आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो? तो मैं उस हिसाब से चालू करूँ, राइट? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स आर कनेक्टिंग एवरीथिंग इन हिंदी और इंग्लिश, राइट? आई एम नॉट फ्रेंडली विथ मराठी लैंग्वेज, तो मैं ट्राई करूंगा हिंदी और इंग्लिश में आपको सब डेमोस्ट्रेट करने के लिए, और एकदम इजी वे में हम समझेंगे कि मार्केट को कैसे रीड करते हैं, टेक्निकल को कैसे रीड करते हैं, और मार्केट के डेटा को टेक्निकल से कैसे कनेक्ट करके हम ट्रेडिंग का अपना प्लान बना सकते हैं, है ना? और जो मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स है इंडियन कम्युनिटी के, दे आर मोर इनटू ऑप्शन ट्रेडिंग, डीपली दे आर इनटू ऑप्शन ट्रेडिंग. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वेबिनार और वर्कशॉप इज दैट कि आपको एक अवेयरनेस आए कि किसी भी ट्रेड का अगर आप प्लान करोगे तो आपको एग्जीक्यूट भी उसी मैनर में करना है, चाहे वो एंट्री हो या चाहे एग्जिट हो, राइट? बिकॉज मेनी ऑफ पीपल आर अवेयर अबाउट ट्रेडिंग बट दे डोंट नो अबाउट हाउ टू यूज सॉफ्टवेयर, हाउ टू यूज प्लॉट प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट कैसे यूज करते हैं, कौन से डेटा देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, और क्यों देखना चाहिए. पहले तो देखना क्यों चाहिए वो भी एक क्वेश्चन मार्क है ना. बिकॉज व्हाट हैपन, जब भी हम स्क्रीन के सामने बैठते हैं ना, तो एक एक बहुत सारा फोमो क्रिएट हुआ होता है कि मैं कहीं रैली ना मिस कर दूं, मेरा कोई अच्छा ट्रेड ना मिस हो जाए, राइट? तो सबसे पहली चीज आपको करनी है कि फोमो की दुनिया से आप बाहर निकल जाओ, राइट? कुछ भी फोमो जैसा नहीं होता है. हमको ऐसा लगता है कि हम ये मिस कर देंगे, वो मिस कर देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है. अब जहां बैठे हो, जैसे बैठे हो, जिस सिचुएशन में बैठे हो, वहां पे आपको जो भी समझ में आ रहा है मार्केट को, उसको कैसे रीड करके आप उसी कंडीशन में ट्रेड कर सकते हो, राइट? और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रेडर्स का यह है कि उनको डेटा ही रीड करना नहीं आता है. और डेटा रीड नहीं कर पाओगे तो आप ट्रेड कैसे कर पाओगे? कि मैं किस में ट्रेड करूं, कैसे ट्रेड करूं, क्या देख के ट्रेड करूं, राइट निकोलस? सो पॉइंट इज दैट Yes, sir. कि हमको हर चीज बहुत सोफिस्टिकेटेड चीजें से तरीके से समझनी है, और जितना सिंपल हो सके उस तरीके से समझनी है, राइट? तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने एनएससी की वेबसाइट आपके सामने खोल के रखी है. मैं कोई वेबसाइट नहीं देखता, और मुझे मुझे अच्छा भी नहीं लगता देखना, टू बी वेरी फ्रैंक, राइट? बिकॉज इतनी सारी वेबसाइट्स देख ली है कि मुझे अभी कुछ जरूरत ही नहीं पड़ रही है देखने की.
क्योंकि घूम फिर के चीजें वही हो रही है जो हमको एनएससी की वेबसाइट पे मिलती है, राइट? तो हमको क्या करना है, एवरी मॉर्निंग बिना फोमो क्रिएट किए हुए हमको सिर्फ एनएससी की वेबसाइट देखनी है कि उस पे क्या दिख रहा है और हमें क्या समझ में आ रहा है, राइट? तो सबसे पहला हमारा लॉजिक होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा पॉइंट्स वर्क व्हाट एनएससी इज डिलीवरिंग टू अस। तो आप अगर देखोगे ये एनएससी की साइट है, एकदम प्लेन साइट। आप अगर एनएससी मार्केट पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से वेबसाइट दिखेगी, राइट? निकोलस, मेक श्योर ये सारी चीजें सबको अच्छे से क्लियर दिखनी चाहिए तो हम उनको रिलेट कर पाए, यस यस सर, राइट? मैं अपने इस पे ये करता हूँ शेयर। आई थिंक या आप यू कैन शेयर योर स्क्रीन लेटर, लेट मी या शेयर इट फॉर नाउ। श्योर श्योर श्योर। या ताकि वो कंफ्यूजन ना हो क्लाइंट्स को दो दो या स्क्रीन या का। या श्योर श्योर श्योर। ओके ओके ओके, ठीक है। रेडी? यस सर। राइट, सो दिस इज व्हाट एनएससी वेबसाइट इज। तो एनएससी की वेबसाइट पे हमको सारे डेटा देखने आने चाहिए। सबसे पहला कि मार्केट क्या कर रहा है और कैसे करने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट देखते हैं तो हमको सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा है, यहाँ नीचे लाइन है कुछ, और उसके बाद आपको यहाँ पे ये वाला कॉलम दिख रहा है। आपको इस पे क्लिक करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर इसको क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखेगा हीट मैप, राइट? जो बहुत लोग नहीं देखते हैं। तो आपको हीट मैप देखने से ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस क्या कर रहे हैं, और 19 का फिगर दिख रहा है, ये हमको बता रहा है कि 19 इंडेक्स क्या कर रहे हैं और कितनी तेजी से काम कर रहे हैं और कितनी वीकली काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 19 इंडेक्स में मेजोरिटी ऑफ इंडेक्स ग्रीन है। तो इससे जो तुमको फोमो क्रिएट होता है ना, वो दूर हो जाएगा कि मेरे को लॉस हो जाएगा, मैं ट्रेड में रह गया। आपको इस सब से कुछ डरने की जरूरत नहीं है, इट इज वेरी सिंपल। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी 50, निफ्टी स्मॉल कैप सारे इंडेक्स आ गए, ठीक है? अभी इसमें दो चीज है, एक डार्क ग्रीन और एक लाइट ग्रीन। नाउ व्हाट इज डार्क ग्रीन? डार्क ग्रीन का मतलब है ये इंडेक्स ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ब्रॉडर मार्केट को, और लाइट ग्रीन का मतलब है ये सपोर्ट कर रहे हैं पर थोड़े पीछे है इनसे, ठीक है? तो दो टाइप के डिफरेंस आ गए, डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन। तो अगर आपको अच्छे मोमेंटम देखने हैं, तो अच्छा मोमेंटम देखना है तो ये इंडेक्स में दिखेगा आपको, ये डार्क ग्रीन है ना, और उससे थोड़ा कम मोमेंटम दिखेगा ये वाले इंडेक्स में। बट ऑल टुगेदर सब्जेक्ट इज मार्केट इज टोटली बुलिश राइट नाउ, राइट? एक भी इंडेक्स रेड नहीं है मतलब मार्केट बुलिश है। तो ये ब्रॉडर मार्केट का एक हमने अभी एक छोटा सा ओवरव्यू लिया, जिससे हमको एक क्लियरिटी आई कि इधर मार्केट इज बुलिश और इधर मार्केट इज बेरिश। इज दैट क्लियर? यस राइट? तो कभी भी आप ट्रेड करो, आपको एक पेन और पेपर लेके बैठना है, या तो आपका एक फोल्डर बना दो कि हाउ आई एनालाइज मार्केट, जिससे मैं मार्केट में ट्रेड करूं। हर चीज का एक तरीका होता है ना, जैसे आप घर से निकलते हो तो आपका रेगुलर रूटीन क्या है? मैं एक सीढ़ी से उतरूंगा, मैं लिफ्ट से जाऊंगा, या तो फिर कार में बैठूंगा या बस में जाऊंगा। हर चीज का एक रूटीन होता है ना। तो वी नीड टू कनेक्ट डॉट्स कि व्हाई रूटीन इज इंपॉर्टेंट टू डू समथिंग नीडफुल इन अवर लाइफ, राइट? तो अगर ट्रेडिंग करना है ना तो उसमें भी एक एक हमारा प्रोसेस होना चाहिए, राइट निकोलस? हमको यस एक सर। प्रोसेस का गुलाम बनना पड़ेगा किसी भी एक चीज का, कि भाई ये प्रोसेस से ही पैसे बनेंगे। हमको दूसरा कोई प्रोसेस नहीं देखना, बिकॉज डूइंग बोरिंग थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। हमको कुछ चीजें करनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, फिर भी करनी पड़ती है। क्यों हमको करनी पड़ती है? बिकॉज उससे हमारा बहुत कुछ चलता है ना? करेक्ट। तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं होगा कि मुझे नहीं करना है बस चाहे जो हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हर चीज का एक प्रोसेस है, तो मार्केट का भी एक प्रोसेस है। तो अगर आपको ये हीट मैप समझ में आता है तो अभी इसके बाद दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि हीट मैप में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इसके अंदर हमको निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, ये तीन जो इंडेक्स है हमारे, ये मेजोरिटी लार्ज कैप है, राइट? तो जो लार्ज कैप इंडेक्स है वो मार्केट के ड्राइवर्स होते हैं, राइट? तो हमको लार्ज कैप इंडेक्स क्या कर रहा है उसकी भी क्लियरिटी बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि जब तक वो नहीं हिलेंगे मार्केट एक ही जगह घूमता रहेगा, बाकी सारे इंडेक्स सपोर्ट करे तो भी उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट पॉइंट क्या है, अगर लार्ज कैप इंडेक्स सपोर्ट करेंगे तो फ्लो अच्छा दिखेगा मार्केट का, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठे होते हैं। लार्ज कैप इंडेक्स इज वेयर पीपल डम देयर वेरी हैवी मनी, दैट्स व्हाई दे आर लार्ज कैप्स, राइट? बाकी सारे यस इंडेक्स में इतना मोमेंटम नहीं होता है, कितना भी ग्रीन हो जाए बट उसको एनर्जी चाहिए लार्ज कैप से, ठीक है? तो लार्ज कैप एंड मिड कैप, टू प्लेसेस वेर वी नीड ह्यूज मोमेंटम, टू मार्केट को ऊपर जाने के लिए अच्छा मोमेंटम चाहिए। इसके बाद हम दूसरा सेक्टर देख, अब सेक्टोरियल इंडेक्स में चले जाएंगे।
सेक्टर से हमें क्या समझ में पड़ता है कि किस सेक्टर का वेटेज ज्यादा है और किस सेक्टर का वेटेज कम है। क्लियर। तो हम लोग को यहाँ पे एक चीज स्क्रीन पे दिख रही है, डार्क ग्रीन, डार्क लाइट रेड, लाइट लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन, राइट। तो इसमें क्लियरिटी क्या आ रही है हमको, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे हमारा एक ओवरव्यू आया दिमाग का कि भाई टुडे मार्केट इज बुलिश जस्ट बिकॉज एंटायर सेक्टर इज सपोर्टिंग। क्लियर। एंड सेकेंड यस, थिंग, ब्रॉड मार्केट इज सपोर्टिंग। मतलब यहां पे मुझे अगर गलती से भी मंदी का डाउट आता है तो हमारे दिमाग में ही प्रॉब्लम है, राइट। कम से कम एक कॉमन सेंस होना चाहिए ट्रेडिंग के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉमन सेंस के देख के समझ में क्या आ रहा है। क्लियर। तो हमको यस, ब्रॉड मार्केट से भी पता चल गया और सेक्टर से भी पता चल गया कि सेक्टर में दम बहुत है। अभी कितना दम है उसका एनालाइज करेंगे हम। ठीक है। अभी कितना दम में क्या, अभी हमारे पास इंडियन मार्केट के अंदर जो मार्केट को ड्राइव करते हैं वो तीन मेजर सेक्टर है, राइट। पहला है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट, जो 36 से 37% होल्ड करता है मार्केट में। तो अगर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सपोर्ट कर रहे हैं तो मार्केट में एक ऑरा बन चुका है कि पॉजिटिव रहेगा। दूसरा जो इंडेक्स है हमारा निफ्टी आईटी है। ठीक है। तो ये निफ्टी आईटी भी ग्रीन है पर उतना ग्रीन नहीं है। अगर प्रेशर आया तो शायद यहां से आ सकता है, उसकी तैयारी रखो कि भाई जब तक इसमें अच्छा गेन नहीं है। अभी अच्छा गेन का क्या मतलब है, मैंने तीन चीजें बनाई हैं मार्केट को समझने के लिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मुझे नहीं पता लोग क्या सोचते हैं। बट पहला परसेंटेज होता है 0.50% के अंदर कोई भी इंडेक्स अगर ऊपर है तो उसमें अच्छा मोमेंटम है। तो यहां पे आपको जो भी इंडेक्स में 0.50 मोमेंटम दिख रहा है वो एक्सटेंडेड गेन में चला जाता है। तो यहां पे सारे इंडेक्स में ग्रीन दिख रहा है आपको, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%। अब जिस भी इंडेक्स में 0.50 के नीचे है वहां पे ऊपर से नीचे आने की भी प्रोबेबिलिटी इतनी रहती, क्योंकि इतने मार्केट के सपोर्ट करने के बाद भी उसमें एक्सटेंडेड गेन नहीं दिख रहा है। अभी यहाँ पे 0.25 है, यहाँ पे 0.41 है, अभी यहाँ पे 0.50 है। तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स सपोर्ट कर रहा है बट ये वाले जो कुछ स्टॉक है ना वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे, ये दिख रहा है आपको, राइट। तो इस इंडेक्स की वजह से आज मार्केट एक ही जगह चिपका हुआ था। तो अभी इस इंडेक्स के अंदर कौन से स्टॉक है जो चिपके हुए थे वो भी हमको समझने पड़ेंगे, क्योंकि आईटी हमको चाहिए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल हमको चाहिए, ऑयल एंड गैस 110% चाहिए। तो अभी ऑयल एंड गैस का 1%, ऑलमोस्ट 0.50% के ऊपर रेशियो है ये रहा। दैट मीन्स इट इज सपोर्टिंग वेरी गुड, राइट। फिर हमारा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सपोर्ट कर रहा था, उसके बाद निफ्टी हेल्थ केयर सपोर्ट कर रहा था, फिर निफ्टी, ये फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स मतलब जितने भी मेजोरिटी ग्रीन है ना वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं बट बाकी के सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर। तो जो चीज यस। सपोर्ट कर रही है उसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम अच्छा दिख रहा है हमें। अभी और एक पॉइंट है कि हमको अगर मान लो कि स्टॉक में ट्रेड करना है रादर देन इंडेक्स, इफ यू नीड टू सिलेक्ट स्टॉक्स कि कौन से स्टॉक्स में हमको ट्रेड करना चाहिए, तो ये डार्क ग्रीन वाले पोर्शन पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको यहां पे जो स्टॉक अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं वो दिख जाएंगे, ये रहे। इज दैट क्लियर। यस, तो हम लोग जो रिफाइंड प्रोसेस में जा रहे हैं ना उसका पूरा तरीका एक प्लॉट कर दो कि ये तरीके से मैं स्टॉक सिलेक्शन करूंगा। उसके बाद डेटा कहाँ देखना है वो हम ट्रेड स्मार्ट सिक्योरिटीज के प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि टॉप गेनर्स क्या है, टॉप लूजर क्या है, मोमेंटम बिल्डर्स क्या है। बट पॉइंट है कि अगर यहां से हमें समझ में आ रहा है तो हमको कहीं जाने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है। तो आपको सारे इंडेक्स में करंट दिखेगा अभी धीरे धीरे। निकोलस, इनको सारे इंडेक्स का फिल्टर अगर अपने पीपीटी में ट्रेड स्मार्ट के प्लेटफॉर्म पे देखना है तो कैसे देखेंगे इनको, अगर आप बता सकते हो तो। सारे इंडाइसेस का। हाँ, जिस स्टॉक्स में जैसे ये इंडेक्स इंडेक्स में जो स्टॉक्स में करंट है वो देखना हो तो कैसे देखेंगे। ठीक है, ये करंट स्टॉक्स है। ओके, हाँ। एक मिनट। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ से। लेट्स से हमें निफ्टी 500 में देखना है या निफ्टी ऑटो में देखना है। यस यस यस। ओके, यहाँ पे निफ्टी ऑटो है। यस। ओके, निफ्टी ऑटो के सब स्टॉक्स यहाँ पे हम देख सकते हैं। वेरी गुड, वॉल्यूम जिसमें के साथ है। अगर थोड़ा इसको बड़ा कर पाते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अ, एक मिनट, हाँ मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा। ओके ओके। हाँ, वॉल्यूम गेनर्स, वॉल्यूम गेनर्स, वॉल्यूम गेनर्स। it is major part because if volume is going up, chart will go up, price will go up, right? We यस, can't trade without volume. अगर यस, बिना वॉल्यूम के चीजें ऊपर जा रही तो फेक ब्रेकआउट हो सकता है। करेक्ट। वेलिंग वॉल्यूम प्लेज वेरी मेजर रोल इन
एनीथिंग लाइक अभी सपोज अभी ये है, ठीक है, अभी वॉल्यूम गेनर्स एंड गेनर्स बोथ आर कंबाइंड, राइट? अभी इसके अंदर आपको अगर हैवी हैवी वॉल्यूम वाले देखने हैं तो इसके अलावा नो, और नीचे जिसमें, अच्छा टाटा कंज्यूमर, हाँ सारे इंडेक्स में दिखा दो कैसे देख सकते हैं अपने। ठीक है। हाँ, लेट्स से जैसे हमने आपको, एनएससी की साइट पे देखा ना निकोलस, यस यस करेक्ट। वो एनएससी की साइट ओके, वाला डायरेक्ट यहां से रिलेट होना चाहिए। हेल्थ केयर में भी हमने देखा था आज मोमेंटम है, तो या अगेन हेल्थ केयर में हम देख सकते हैं कौन से स्टॉक्स थे पहले ज्यादा पहले एक मोमेंटम। काम करो निकोलस, एनएससी की हम्म जो वेबसाइट है ना, वहां पे जो इंडेक्स में अच्छा करंट है ना, हम्म। सारे इंडेक्स एक एक करके देख लो आप। श्योर। जैसे मान लो आपने, गाइस आप लोग देखो ये इंडेक्स, एनएससी की साइट बहुत प्योर डेटा दिखाती है, राइट? तो आप कोई भी निफ्टी रियल्टी उठा लो, चलो निफ्टी रियल्टी के स्टॉक, मान लो निफ्टी रियल्टी पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे निफ्टी रियल्टी डाल दो आप। हाँ ये रहा, ये आ गए आपके सारे वॉल्यूम बजर्स। क्लियर? हमको रिफाइन प्रोसेस में जाना है तो ये सब करना पड़ेगा अगर टाइम नहीं बिगाड़ना है तो। किसी भी चीज का एक प्रोसेस होता है कि मैं वॉल्यूम वाले स्टॉक देखूंगा, अच्छे मोमेंटम वाले स्टॉक देखूंगा, तो मुझे एक तेजी मिलेगी। अगर राइट। मुझे कोई सेटअप ढूंढना है तो ऐसी जगह ढूंढना पड़ेगा जहां पे घोड़े भाग रहे हो, गधे नहीं, है ना? तो हमको घोड़े पकड़ने हैं और उस पे घोड़े पे बैठ के हम आगे निकल सकते हैं। हम अगर ऐसे स्टॉक पकड़ेंगे जो चल ही नहीं रहे, हम सोचेंगे इतना मार्केट चल गया, ये स्टॉक नहीं चला, इसको ले लेता हूं शायद चल जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, शायद के चक्कर में क्यों पड़ना है आपको? राइट। वो एक स्टोरी सुनी होगी ना, बहती गंगा में हाथ धोना आना चाहिए। सही बात है। राइट? तो हमको हमेशा बहती गंगा देखनी है कि कहाँ पे गंगा बह रही है, और उसी के फ्लो में जाओ। और व्हाट 90% पीपल डू, दे गो अगेंस्ट द ट्रेंड, राइट। राइट? वी शुड नेवर एवर डू दैट। करेक्ट। आपको शायद ऐसा होगा कि आपने दो अच्छी रैली वाले स्टॉक पकड़े, दो में से एक नीचे चला गया, बट एक तो आपको 10 स्टॉक के बराबर रिटर्न दे देगा, यस। राइट? तो हमको मोमेंटम वाले स्टॉक भी पकड़ने आने चाहिए। हम्म क्लियर? अभी एनएससी की साइट पे और एक बहुत अच्छा डेटा है, अगर आप एनएससी की साइट पे जाओ, अभी यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। अभी मान लो कि निफ्टी ऑटो, एक मिनट, निफ्टी निफ्टी रियल्टी के इंडेक्स पे जाओ तो, हाँ यहाँ पे मान लो अनंत राज पे क्लिक करो आप। आपको ऐसे ही रखना है, एक मिनट, यहाँ पे कुछ फिगर्स दिख रहे हैं आपको, दिस इज वेरी गुड, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। पे आपको चेंज दिख रहा है। सबसे पहला पॉइंट है कितना घुमा वो, मतलब उसने डेविएशन कितना दिया, रेंज कितना बनाया। 21.40 का इसने रेंज बनाया है, ठीक है? मतलब आज की वोलेटिलिटी इसकी 21 पॉइंट्स की है। अभी यस। दूसरा वीवैप, वीवैप इज वेरी इजी इंडिकेटर टू यूज, अबव वीवैप एंड बिलो वीवैप। हाउ ट्रेडर यूज वीवैप? तो ट्रेडर जब भी विवेक के ऊपर रहता है तो उसको मोमेंटम बाइंग में कंट्रीब्यूशन मोड में ले जाते हैं, और विवेक के नीचे रहता है तो वो सेलिंग मोमेंटम में चला जाता है। अब इसका हाई कितना है वो फिगर भी आ गया, लो कितना है ये भी फिगर भी आ गया। अब ट्रेडेड वॉल्यूम भी आ गया। वॉल्यूम निकोलस ने आपको ट्रेड स्मार्ट सिक्योरिटीज के प्लेटफॉर्म पे दिखा दिया, राइट? अभी विवेप यहाँ पे दिख रहा है, हाई यहाँ पे दिख रहा है, लो यहाँ पे दिख रहा है। अभी निकोलस इनको आपके प्लेटफॉर्म पे अनंत राज का चार्ट दिखाओ, और दिखा। विवेक के ऊपर उसने क्या किया है वो बताओ। हम्म। राइट? सिंपल इंडिकेटर है, बहुत प्यारा। सारे इंडिकेटर हटा दो, एक एक करके समझाते हैं। खाली अच्छा विवेक ओके। को रखो, खाली विवेक को रखो, ओके। ओनली विवेक, यस। या यस, सी दिस। अभी ये हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग के अंदर होता है टाइम फ्रेम एनालिसिस, राइट? तो अगर हम यहां पे आज का चार्ट निकालो पूरा, आज शुरू से निकालो, शुरू का दिन का पूरा चार्ट, 9:15 हाँ से, ये, यस है। राइट? अभी आप देखो, आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम, मतलब हर 5 मिनट की कैंडल, 1 मिनट की, 5 5 मिनट की एक कैंडल बनेगी, राइट? तो यहां पे कितने बार वीवैप ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है वो देखो। सबसे पहला आप देखो कि वीवैप में ब्रेकआउट आया है, पहले बैक टू बैक 3 कैंडल्स आई बड़ी, क्लियर? उसके बाद उसमें छोटा सा डाउन ट्रेंड आया। अभी आपकी यहाँ पे वीवैप के ऊपर रहने से टेंडेंसी क्या क्लियर होती है कि मुझे बाई कहां पे करना है। आपको क्लियर ब्रेकआउट चाहिए, ब्रेकआउट हो गया है। अभी यहाँ पे आप देखो जिस लाइन के ऊपर, अगर ये वाला एरिया देखोगे, ये वाला एरिया निकोलस, जहां पे एकदम क्लियर एंट्री मिल रही है वीवैप की लाइन के ऊपर, ये रहा, ये जो ग्रीन कैंडल है, हाँ ये ग्रीन कैंडल है ना, उसकी नेक्स्ट कैंडल है ना, उसके बाद की ग्रीन कैंडल से लेके आप फ्लो खेल सकते हो ऊपर की साइड में, यहां से। यस,
जब तक वीवैप की लाइन को तोड़ता नहीं है ना, आपको एग्जिट नहीं करना है, पर हमको क्लियर कट ब्रेकआउट चाहिए, एकदम क्लियर ब्रेकआउट के टच होके रहेगा तो भी नहीं चलेगा, मुझे चाहिए कैंडल उसके ऊपर ही होनी चाहिए और उसकी नेक्स्ट कैंडल में मैं एंट्री लूंगा। करेक्ट। राइट, तो 2.25% का गेन दिया है। और अभी मान लो कि ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अभी ऐसा आपको बैक टेस्ट भी करना है निकोलस, इनको बैक टेस्ट कैसे करना है ना, वो एक बार, हाँ यहाँ अभी यहाँ जहां अच्छा ब्रेकआउट दिया, राइट, ये रहा, ये कैंडल के नेक्स्ट कैंडल के ऊपर से आप एंट्री ले सकते हो या बीच में भी कहीं भी एंट्री ले सकते हो, बट कैंडल उसके ऊपर होनी चाहिए। यस, उसको खींचो और यस, पहला फ्लो ये था, उसके नीचे 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 आओ थोड़ा, हाँ, ये हम्म। टॉप पे चले जाओ, इसके टॉप पे, इस फ्लो पे के अब। टॉप पे, हाँ बस, यहां तक ओके। इसने इतना तो रिटर्न दिया हमको, हम्म। 1.176। तो यस। दिन का 1.5-2% भी इट इज वेरी गुड रिटर्न इन इंट्राडे। राइट, हमको बट वीवेब के ऊपर वाली कैंडल से ही एंट्री लेनी है और उसके टॉप पे ही कहीं पे एंट्री ले लेनी है, और जैसे ही वीवेब को टच करने आता है आपको एग्जिट कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ, आप खाली वीमैप को देख के ट्रेड ले रहे हो और फिल्टर स्टॉक किया आपने एनएससी से, तो आपका दो प्रोमिनेंट सेटअप हो गया, अबव वीवेप बाय, बिलो वीवेप सेल। अब यहाँ पे हम कुछ भी नहीं देख रहे हैं, कोई फिल्टर नहीं देख रहे हैं, एकदम प्योर वीवेप बेस्ड ट्रेडिंग है, प्योर वीवेप बेस्ड ट्रेडिंग। यस। तो इफ समवन सेज यू व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर, यू नीड टू से आई यूज वीवेप मोस्ट टू ट्रेड एनी स्टॉक। तो ये आपका एक डिसिप्लिन हो गया, ठीक है। अभी ये, और एक चीज पॉइंट नंबर 2 है, डू वीवेप वर्क एवरी टाइम, नो, हमेशा वीवेप काम नहीं करेगा, राइट। तो कभी कभी लैग भी करता है, निकोलिस इनको लैग एरिया भी दिखाओ, राइट। तो जहां पे वीवेप काम नहीं करता है और जहां पे वीवेप काम करता है, जब वीवेप काम करता है तो आपको कितना परसेंटेज में गेन मिला वो भी देखना है, और जब नहीं काम करता है तो आपके कितने पैसे ले जाता है वो भी देखना है। तो मान लो यहाँ पे वीवेप ने काम नहीं किया, राइट, तो ये पूरा एरिया एक बॉक्स हो गया ना, ये पूरा बॉक्स बना दो यहाँ पे, या, तो आपको यहाँ पे 5 पॉइंट्स का नुकसान हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है, क्लियर। बट उसके सामने अभी जहां पे रिटर्न मिला, अभी विवेक के नीचे कैंडल आई, यहाँ पे देखो, विवेक के नीचे जब कैंडल आती है यहाँ पे आप शॉर्ट करते हो, तो आपको ये पूरा प्राइस एक्शन खेलने को मिला, ठीक है। तो आप समझो आपको रिटर्न कितना मिला, आपका गया कितना वो इंपॉर्टेंट है, अब उसके सामने मिला कितना वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग हमेशा है ना नेगेटिव चीजें ज्यादा देखते हैं जो हमको बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। इज दैट क्लियर? करेक्ट। So we need to focus very precisely what we need to use, why need to use and when we need to use. हमेशा सारे इंडिकेटर्स काम नहीं करेंगे एंड दैट इज फॉर श्योर। मान लो कि आप कुछ भी करो, आपकी लाइफ में भी ऐसे फेज आते हैं जब ठहराव आ जाता है, राइट, तब आप उल्टे सीधे डिसीजन लोगे तो सब मैसअप ही होने वाला है। तो मार्केट जब मोमेंटम में हो, सारे इंडिकेटर अच्छे काम करते हैं, बट आपके पास कौन सा इंडिकेटर है जिसका आपने बैक टेस्ट किया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आपको यस। बैक टेस्ट कैसे करना है, इस तरीके से करना है कि जब गिरा तो इतना गिरा, अब पॉजिटिव ट्रेंड दिखाओ ना निकोलस इनको, जब पॉजिटिव ट्रेंड आता है, ये रहा, जैसे ये वाला ट्रेंड है बहुत पॉजिटिव है, राइट। तो यहां से यहां तक, वहां पे आपको 14-15 पॉइंट दिए, अब यहां से इसने कितने पॉइंट्स दिए, तो 9 पॉइंट दिए, 9 पॉइंट्स प्लस 14 पॉइंट्स, तो आपको ऑल टुगेदर 25-30 पॉइंट मिल गए हैं। उसके सामने अगर आपके 2-4 पॉइंट स्टॉप लॉस होता है, अगर आपने वहां पे ज्यादा पोजीशन साइजिंग कर दी तो इट इज योर प्रॉब्लम, नॉट मार्केट्स प्रॉब्लम, राइट। राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज इट ऑन डेली बेसिस। कोई भी एक प्रोमिनेंट सेटअप रखो आप, तब जाके आपको इफेक्टिवनेस दिखेगा। अभी इसमें एनबीसीसी दिखाओ तो, ये एनबीसीसी का चार्ट दिखाओ तो, यस, अभी इस पे देखो क्या तगड़ा ब्रेकआउट दिया है, 3.44%, और एक भी बार वीवेप के नीचे गया नहीं है, राइट। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जब ये चलता है तो कितना देता है, जब ये नहीं चलता है तो मेरा कितना ले जाता है। तो जो, मान लो आपने शॉर्ट सेल करके 10 पॉइंट बनाए, आपने बाय करके 10 पॉइंट बनाए, और जब लैग किया तो 2-4 पॉइंट ले गया, तो 20 में से 4 ले गया, तो आपका तो विनिंग पॉइंट ज्यादा हुआ ना लूजिंग से। करेक्ट। दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस। यस। सेक्टर रिफाइन करो, उसके बाद आपको एक प्रोमिनेंट इंडिकेटर निकालो जो आपको समझ में आता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप वीवीआईपी यूज करो, बट आपको यूज कैसे करना है वो आना चाहिए। रूल बना दो इसके अंदर, अबव वीवीआईपी आई विल बाय, बट जैसे ही वीवीआईपी क्रॉस करता है वैसे नहीं घुसना है, उसको कंफर्मेशन का वेट करो।
कि कौन सी कैंडल स्ट्रांग क्लोज हो रही है वीवेप के एकदम ऊपर। तो ये जो लाइन है यहाँ पे, मान लो कि ये वाली लाइन है, इसके ऊपर क्लोज हो रही है, तो हम यहां से भी एंट्री ले सकते हैं। जैसे ही क्रॉस कर दिया मत घुसो, मतलब वहां पे इंपेशेंस नहीं होना है हमको कि भाई मेरे से रहा नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। राइट, वी नीड क्लियरिटी। अब कितने भी स्टॉक्स देखो निकोलस, दो तीन और एग्जांपल दे दो इनको जिसमें आई थिंक दे कैन गो एंड लर्न वेरी वेल। कोई भी इंडेक्स में से कोई भी स्टॉक निकालो आप। हाँ, मदरसन, यूनोमिंडा, वॉट एवर दे इज। ये उस पर क्लिक करो, देखो ये रहा इस कैंडल के एग्जैक्ट ऊपर वाली कैंडल यहां पे, ये यहाँ 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 ये रहा। यहाँ यस, पे आप बोल रहे यहां हो? से भी ट्रेड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको क्लियर ट्रेंड चाहिए, क्लियर ट्रेंड। राइट, और आपका पेशेंस थोड़ा रखो, और लंबे टाइम फ्रेम में और अच्छा काम करता है। 15 मिनट्स में जाओ, 15 मिनट्स में। यस, 15 मिनट्स, और 4 आवर, 1 आवर, 1 डे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे तो एक्सेप्शनल काम करता है। देखो कैंडल्स उसके नीचे जानी ही नहीं चाहिए किसी भी हिसाब से। जितना छोटा टाइम फ्रेम यूज करोगे उतना खराब रिजल्ट आएगा, आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। कैंडल जब तक उसके ऊपर बनी हुई है आपको यूज करते रहना। ये देखो बहुत प्यारा सेटअप मिलेगा आपको, है ना। बट पॉइंट है कि आपको कोई एथिक्स बनाने पड़ेंगे कि भाई मैं क्या देख के ट्रेड करूं। इज दैट क्लियर? यस। राइट, अभी हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे। अभी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे हम देखेंगे अदर इंडिकेटर्स कौन से जो हम यूज कर सकते हैं। राइट नाउ, फिल्टर एनी अदर स्टॉक। अगर मान लो कि आपको कोई भी स्टॉक ढूंढना है, इनको एक मिनट एडमिट कर लेता हूं मैं। हम्म। अभी और कोई स्टॉक ढूंढना है, जैसे मान लो कि निकोलस आपकी वेबसाइट से, जैसे अगर उनको फटाफट से कोई स्टॉक ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे? यहाँ से ही कर सकते हैं। लेट्स से आपको अगर 500 निफ्टी 500 का मतलब 500 स्टॉक्स का देखना है तो भी आप देख सकते हो डायरेक्टली यहाँ से। कोई भी स्टॉक फटाफट गेनर लूजर्स में ठीक है। जाके फटाफट अगर उनको ये ओके। सब करना है। यहाँ से आप कर सकते हो इजीली। मूवर्स में जाके गेनर्स में जाके आप देख सकते हो निफ्टी 500 के सब स्टॉक्स। तो यहाँ पे यस, दिख रहा है राजेश एक्सपोर्ट फॉर एग्जांपल। यस, ग्रेट। इसने भी ब्रेकआउट दे दिया, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तगड़ा ब्रेकआउट दे दिया। राइट, यस। अभी चलो मान लो कि अगर मुझे इसमें आरएसआई यूज करना है, आई डोंट नो आप लोग कितने लोग हो जिनको आरएसआई बहुत प्यारा है। सिर्फ आरएसआई यूज करके मोमेंटम का कैसा पता लगाएंगे हम? राइट, अभी आरएसआई जनरली क्या कहता है? ओवरबॉट ओवरसोल्ड इंडिकेटर है। राइट, मेनी पीपल ओनली नो दैट इट इज ओवरबॉट इंडिकेटर एंड ओवरसोल्ड इंडिकेटर। राइट, बट नो, इट इज अ वेरी प्रोमिनेंट इंडिकेटर। अगर आप अच्छे से यूज करोगे ना, सबसे पहले वो ही बताता है कि भाई क्या होने वाला है। राइट, तो फर्स्ट विल लर्न कि व्हाट इज ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। और हमेशा इंडिकेटर नहीं मानने चाहिए, वो भी एक टेंडेंसी देखेंगे, क्योंकि ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे इंडिकेटर को डेली बेसिस पे। हाँ, ये कुछ ध्रुवीन करके क्वेश्चन पूछ रहे। विल क्वेश्चन, विल हम लोग आपको थोड़ा लास्ट में रिप्लाई करेंगे ये सब चीजों का, क्योंकि फ्लो टूट जाएगा। ठीक है, हम लोग अच्छी तरीके से बताएंगे। ठीक है, डोंट वरी, विल नॉट लीव एनी वन। यहाँ पे आए होगो तो क्लियरिटी लिए बिना जाना नहीं है, वो बहुत श्योर है। ठीक है, एंड विल टेक केयर ऑफ दिस, डोंट वरी। और ये हम इसका शेयर भी कर देंगे आपको जो भी कुछ है। अभी मान लो, सबसे पहला रूल है हम लोग ओवरबॉट ओवरसोल्ड देखते हैं। राइट, तो अभी मान लो आरएसआई में अगर आपको इसमें ओवरबॉट दिख रहा है तो आप इसमें बाय नहीं करोगे। जनरली 80-70 इज ओवरबॉट एरिया, दिस इज ओवरबॉट एरिया, उसको राउंड कर दो। दिस इज ओवरबॉट एरिया। राइट, दिस इज ओवरबॉट एरिया। हाँ, वो ओवरबॉट एरिया हो गया। अभी यहां पे और एक ओवरबॉट एरिया है। यस, नाउ हियर वी गेट रॉन्ग इन सम प्लेस, बिकॉज देखो डॉट्स कनेक्ट करना मैं जो बोल रहा हूं। अभी मान लो कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया है कि स्टॉक बहुत टाइम से नीचे गिर रहा था। राइट, बहुत टाइम से नीचे गिर रहा था तो वो ओवरसोल्ड जोन में दिखाएगा। बट अब जब नेगेटिव न्यूज ही है तो आप कितने भी इंडिकेटर लगा लो, वो कितना भी नीचे जाएगा, आप उसको ओवरसोल्ड करके बाय करते रहोगे तो कहां से काम करेगा वो? राइट, यस। तो हमारे पास सबसे पहले ट्रेडिंग में कॉमन सेंस होना चाहिए।
कि भाई व्हेन नॉट टू यूज इंडिकेटर। अभी मान लो इंडिगो का प्रॉब्लम है, ठीक है, अभी इंडिगो का शेयर किसी रीजन से बहुत गिरा, फ्लाइट कैंसिल हुई, जो भी कुछ हुआ, अभी हम वहां पे आरएसए लगा के देखेंगे कि भाई ये तो ओवरसोल्ड है, इसको बाई कर लो। तो वहां पे कॉमन सेंस कहां से आया अपना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? आप डॉट्स को कनेक्ट करो। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कहां पे ओवरसोल्ड ओवरबॉट यूज किया जाता है। जब नॉर्मल मार्केट है और तब ओवरबॉट ओवरसोल्ड बता रहा है, देन इट इज ओके। बट when things are out of control and we are using RSI oversold overbought, it is not in our control. Are you getting me or not? Yes. Right. Now, point number two, when the normal market is steady, we can consider it overbought, oversold. Right. But if the news is there, we can avoid that factor. यहाँ पे Correct. बहुत लोग मार खा जाते हैं कि गलत जगह पे गलत इंडिकेटर यूज करके फिर इंडिकेटर को बोलते हैं ये कुछ काम का नहीं है। बट वी नीड टू यूज अवर ब्रेन फर्स्ट। क्लियर? कोई भी Clear. सरकमस्टांसेस में इंडिकेटर कब काम करता है? जब नॉर्मल चीजें चल रही हो, नॉर्मल मार्केट चल रहा हो, तो सब सही से काम करेगा। अब नॉर्मल कंडीशन में कोई इंडिकेटर काम नहीं करता है भाई। अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया, मान लो 2600 पॉइंट ऊपर नीचे हो गया, आप आरएसआई ओवरसोल्ड करके बेचोगे तो क्या हालत होगा आपका? आप दोबारा इंडिकेटर ही डालना भूल जाओगे। राइट, जस्ट बिकॉज एक गलत मिस्टेक और पूरे साल का कैपिटल गायब। हमको वो नहीं करना है। हमारा कॉमन सेंस क्या बोलता है? नॉर्मल मार्केट में ट्रेड करो, अब नॉर्मल मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, स्पेशली इंडिकेटर्स का यूज करके। क्लियर? अभी इसको इफेक्टिवली यूज कैसे करना है वो देखते हैं। अभी मान लो आज नॉर्मल मार्केट है, कोई भी एक नॉर्मल स्टॉक निकालो, कोई भी एक नॉर्मल स्टॉक निकालो। चलो एथर एनर्जी है, राइट? अभी Hmm. देखो, आरएसआई में फ्लो में ओवरबॉट हो सकता है, तो इसके अंदर पहले ओवरबॉट एरिया दिखा, ये रहा, ठीक है, ये ओवरबॉट एरिया है। इसके बाद एक फेज आता है, रिवर्सल पॉइंट आता है। तो ये रिवर्सल पॉइंट आपको कहां से दिखेगा? रूल नंबर वन, आपको डे हाई डे लो मार्क करना है। निकोलस, इनको डे हाई डे लो मार्क करके दिखाओ। ठीक Hmm. है, तो मान लो आपने कोई भी डे हाई मार्क कर लिया, राइट, और डे लो मार्क कर लिया। ठीक है, अभी इसका एक एवरेज पॉइंट निकालो, इसमें फिब रिट्रेसमेंट प्लेस कर दो। कब हम आरएस, नहीं नहीं, ऊपर से नीचे कनेक्ट करना है, एक मिनट. ऊपर से नीचे कनेक्ट करो। वी नीड Okay. टू बाय। और एक चीज Hmm. याद रखना, फिर जब भी आपको बाय करना है तो ऊपर से नीचे कनेक्ट करना है। ये मैं जो बता रहा हूं ना, ये आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस ला सकता है अगर आप इसको सीरियसली ले लोगे तो। ट्रेडिंग के अंदर स्पेशली देखो, किसी भी चीज का एक मीन रिवर्सल पॉइंट होता है। मीन रिवर्सल इज माय ट्रेडिंग सेटिंग, जो मैं हमेशा यूज करता हूं। अभी डे हाई से डे लो कनेक्ट करने के बाद हमको 0.50 का रेशियो दिख रहा है, वो हमारा मीन रिवर्सल है। अब इसको मैं आरएसआई से भी कनेक्ट करूंगा अभी। ठीक है, अभी कभी भी स्टॉक अगर मीन रिवर्सल के ऊपर एग्जैक्ट ट्रेड कर रहा है, एग्जैक्ट ट्रेड कर रहा है, तो हमको आरएसआई को नहीं ट्रस्ट करना है। वहां पे स्टॉक साइडवेज जोन में चला जाएगा। तो 0.50 रेशियो एंड 0.68 के अंदर जब भी स्टॉक ट्रेड करता है तो वो साइडवेज ट्रेंड में होता है। वो या तो 0.68 के ऊपर बाय करना है, या तो 0.68 के नीचे एग्जिट कर देना है। ये आपका गोल्डन रेशियो है, इसके ऊपर ही आपको बाय करना है अगर फिफ्थ प्लेस करके आरएसआई का अच्छा सा मैट्रिक्स लेना है तो। अभी पॉइंट नंबर टू है यहाँ पे। पॉइंट नंबर टू है, जब आरएसआई ओवरबॉट से नीचे जा रहा है, अब देखो आरएसआई 50 के नीचे चला जाएगा। अभी दूसरा टेक्निक क्या बोलता है कि आरएसआई 50 के नीचे ज्यादा है तो हमको एग्जिट कर देना चाहिए। गलत बात है ये, ऐसे आरएसआई को यूज नहीं करते। आपको देखना है कि मार्केट का फ्लो जब सपोर्ट कर रहा है तो आरएसआई को मुझे नहीं ध्यान देना है, आरएसआई को फ्लो के साथ ही चलना पड़ेगा, तो ही मैं इसको ट्रस्ट करूंगा। अब आरएसआई ने जैसे ही रिवर्सल दिखाया, आपको एंट्री ले लेनी है। आरएसआई ने नीचे 40 को क्रॉस किया, देखो आरएसआई नीचे से 40 को क्रॉस करता है, और यहां पे मीन के ऊपर आपको कैंडल दिखता है, तो आपको एंट्री ले लेनी है। मीन के ऊपर 0.50 रेशियो दिख रहा है आपको,
ये देखो ये 40 से रिवर्सल लिया और यहां से ये वाला 0,618 रेशियो प्लस 50 के ऊपर है, ये आपका कंफर्म बाइंग एरिया आ गया। अब यहां से इसने कितना परसेंटेज गेन दिया निकोलस, दिखाओ ने। यस, समझ गए बात को। ये आपका गोल्डन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो सकता है। अभी इसको देख के आप आरएसआई को देख के ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे ना। क्लियर। हम्म, तो ये मीन रिवर्सल के साथ मैं आरएसआई को कनेक्ट कर रहा हूं कि व्हेन नॉट टू ट्रस्ट आरएसआई। यहां पे मैं मीन को भी कनेक्ट कर रहा हूं, मैं फ्लो को भी समझ रहा हूं, और मैं आरएसआई रिवर्सल पे ट्रेड कर रहा हूं। मैं आरएसआई के फ्लो को ट्रेड नहीं कर रहा हूं। मैंने 3 डॉट्स कनेक्ट किए। ठीक है। हम्म, जनरली क्या होता है, आरएसआई आप अगर वहां से नीचे आ रहे हैं तो हम निकल जाते हैं। बट हमको अगर चार्ट समझ में आ रहा है, फ्लो समझ में आ रहा है, तो हमें क्यों निकल जाना है। हम्म, इज दैट क्लियर। फाइन। अभी पॉइंट नंबर 2 है। अभी इसमें और एक पॉइंट आएगा कि अगर आप इसमें मैकडी यूज करते हो, निकोलस इनको मैकडी दिखाओ, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन दिखाते हैं मैकडी। अभी देखो, आरएसआई का नीचे से 40 क्रॉस करना और मैकडी का पॉजिटिव क्रॉस ओवर और इसका मीन के ऊपर रहना, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। ये कोई बुक में नहीं मिलेगा, कोई जगह नहीं मिलेगा आपको। ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इतने सालों में, मैं आपको बता रहा हूं। कोई अल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर वाला भी नहीं दे सकता आपको। अगर दे रहा होगा तो आप ले ही लेना उस ठीक है। क्योंकि देखो, मैंने बहुत बैक टेस्ट किया है और आपको भी बैक टेस्ट करना है। अब yes, अभी यहां पे और एक पॉइंट है। अभी देखो, मैकडी ने भी लैग किया है, आरएसआई ने भी लैग किया, बट हमारा कॉमन सेंस क्या बोल रहा था कि फ्लो सही है। अब मुझे इंडिकेटर को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कब करना है, जब तू मेरे कंट्रोल में रहेगा तब। जब तक स्टॉक मीन के ऊपर है, आरएसआई कुछ भी बोल रहा है हमको नहीं मानना है। राइट, तू फ्लो के साथ आ, मैं तुझे मान जाऊंगा। अब वो फ्लो के साथ आए, अब उसको ट्रस्ट करो। तो मैकडी का पॉजिटिव क्रॉसओवर, स्टॉक का मीन के ऊपर रहना, और यहाँ पे कभी एक सीधी लाइन बनाओ तो जैसे ही पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है, आपको यहाँ पे वर्टिकल लाइन बना देना है, पॉजिटिव क्रॉसओवर डॉट। 40 पे आ जाओ, 40 पे, आरएसआई 40 पे आ जाओ। यस, यहां पे पहले आरएसआई ने बताया, तो इसने, इसलिए मैं इसको लीडिंग इंडिकेटर बोलता हूं। लीड कौन कर रहा है, आरएसआई कर रहा है। मैकडी ने बाद में बताया, पर बताया तो सही, और ज्यादा कंफर्मेशन के साथ बताया। गलत कुछ भी नहीं है, हमारे कॉमन सेंस के साथ हम ट्रेडिंग सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हैं। आप इसको आपके ट्रेडिंग सेटअप के अंदर रख सकते हो कि कैन आई यूज दिस। यू कैन डेफिनेटली यूज दिस, बट जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग इट इज नॉट लाइक दिस। आपको बैक टेस्ट करना है इसको। निकोलस, इसको बैक टेस्ट करके दिखाओ इनके अंदर लाइव। बैक टेस्ट okay, करके दिखाओ इनको कि भाई जब भी इसने ऐसा किया है तो कितने परसेंटेज का रिटर्न दिया है। right, और जब फ्लो पॉजिटिव है तब, नेगेटिव है तो हम सेलिंग की ही बात करेंगे। कोई भी तेजी वाला स्टॉक निकालो okay. तेजी बंद करना है। जिसमें मोमेंटम अच्छा है। हम्म, यहां पे तो फेक 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 डायरेक्शन दिया है ना मैकडी ने। हम्म, इसलिए तो बोल रहा हूं ना, आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। ये रहा, राइट। यहाँ पे थोड़ा बैक आओ, बैक आओ, बैक आओ। ये रहा, देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव क्रॉसओवर किसने दिया पहले। आरएसआई में पहले है। आरएसआई ने सपोर्ट किया, मैकडी ने भी सपोर्ट किया। आपको कॉम्बिनेशन देखना है, फ्लो के साथ मैच हो रहा है। ये ट्रेंड शुरू हो गया। अभी यहां से कितना परसेंटेज गेन मिला है। 3%। नॉट बैड। इंट्राडे में 3% बहुत होता है। क्लियर। सो आपको राइट वे में इंडिकेटर्स यूज करने हैं, राइट वे में सब कुछ चीजें यूज करोगे। और एक चीज याद रखो, मीन रिवर्सल एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे कॉमन सेंस बहुत साफ हो जाता है कि अबव बॉक्स बिलो बॉक्स। तो जब भी मीन के ऊपर रहता है तो 3 पैटर्न जनरली बनते हैं। अब इसके साथ हम पैटर्न भी कनेक्ट करते हैं ताकि आपको क्लियरिटी आए। राइट। सी, एज अ ट्रेडर we always want to learn some technical deep insights, right? But if we can't use common sense, nothing will work. कि if something is positive, what is going to happen?
अभी जब भी आपको मीन के ऊपर कोई भी पैटर्न दिखते हैं तो तीन डेडली पैटर्न दिखते हैं। पहला आएगा आपका पुल बैक। पहला आएगा आपका पुल बैक। मतलब आपको पुल बैक में क्या दिखता है, एक बैक टू बैक बड़ी बड़ी कैंडल्स ग्रीन दिखेगी, उसके बाद छोटा सा डाउन साइड और बहुत बड़ी रैली। ठीक है। अभी मैं हैंड ओवर करूं, जस्ट अ मिनट निकोलस, कैन Okay. आई Sure. शेयर समथिंग टू देम। मेरे Yes, को yes. वाइट वाइट बोर्ड दो ना पूरा। आई नीड वाइट बोर्ड टू एक्सप्लेन दिस। Whiteboard. हम्म। एंड आई थिंक ये बहुत ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। Hmm. अभी मान लो, सिंपल आपको देखना, मैं जो बोल रहा हूं इसमें आपको बहुत कुछ क्लियरिटी आ जाएगी। अभी मान लो कोई भी स्टॉक बुलिश खुला है, ये इसका जनरल फ्लो होता है। ठीक है। तो आज से आप एक नियम बना लो कि गैप अप वाले स्टॉक्स को छोड़ोगे नहीं। ठीक है। गैप अप का क्या मतलब होता है, अच्छा रन है ना। तो आपको गैप अप में कुछ इस तरीके से फ्लो दिखेगा, दिखता है कि नहीं दिखता है, राइट। और गैप डाउन में आपको कुछ इस तरीके से फ्लो दिखता है। मार्केट कभी भी इस तरीके से ऊपर नहीं जाता और इस तरीके से भी नहीं जाता है। अगर इस तरीके से जाता है तो आप एक थियरी याद कर सकते हो, पोल नेवर सस्टेन्स। कोई भी खंबा खड़ा नहीं रहेगा जल्दी, क्योंकि कभी भी सीधे पोल पे बंदर नहीं चढ़ते हैं। अब हम खुद को बंदर बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने के लिए सब इजी है। कोई भी खड़े खंबे पे कभी कोई बंदर नहीं चढ़ता है, वो हमेशा ऐसी जगह ही चढ़ेगा, क्योंकि ये इजी है। आर यू गेटिंग मी और नॉट। Yes. तो मार्केट मूव जनरली इन दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन, वो कभी भी ऐसे नहीं खड़ा होता है। अगर खड़ा हो रहा है तो बहुत अनकंडीशनल बाइंग हो रही है उसके अंदर, और वो गिरेगा भी ऐसा ही। तो ये जो गिरता है उसके बाद आपको ये जो रैली दिखती है इसको पुल बैक बोलते हैं, राइट। तो जब भी सुबह आपको गैप अप और गैप डाउन वाले स्टॉक ढूंढने हैं, निकोलस आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ऐसा है क्या, गैप अप और गैप डाउन वाले स्टॉक्स तगड़े दिख सके। एक मिनट है सर. हाँ, या तो एनएससी की साइड से भी देख लेते हैं, जो स्टॉक गैप अप होते हैं और गैप डाउन होते हैं, या तो टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स वो गैप अप भी होते हैं ज्यादातर। तो Okay. अगर आपको गैप 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 अप गैप डाउन दिखे, तो अगर ऐसा फ्लो दिखता है, तो आप एक काम करना, सबसे पहले आपको दिन का हाई और दिन का लो मार्क करके आपको यहाँ पे फिप प्लेस कर देना है, यहां से लेके यहां तक फिप प्लेस कर देना है। उसके बाद आपको एक रेशियो दिखेगा 050 रेशियो, और उसके ऊपर 061 रेशियो दिखेगा। अभी जब भी आपको इस तरीके से पुल बैक दिखता है, आपको एंट्री लेनी है 061 पे और दिन के हाई पे एग्जिट कर देना है। अगर ये चीज समझ में आती है, इसको पुल बैक बोलते हैं। दिस इज पुल बैक ट्रेडिंग सेटअप, बुलिश पुल बैक। दूसरा पॉइंट, अगर ये पुल बैक पहला सस्टेन नहीं कर पाया तो वो यहां से घूमेगा, ये दूसरा चांस, दूसरा चांस। और अगर ये दोनों के बीच में स्टॉक टाइम पास कर रहा है तो क्या, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो जनरली तीन पैटर्न बनते हैं सुबह सुबह। एक होता है पुल बैक, एक होता है फ्लैग जो इस तरीके से बनेगा पर मीन के ऊपर होना चाहिए, और एक होता है बुलिश पीनट, जिसमें ये सारे फॉर्मेशन एक दूसरे से नीचे होंगे और ये सारे फॉर्मेशन एक दूसरे से ऊपर होंगे और इस तरीके से जाएगा। तो हम लोग ने अर्ली मॉर्निंग में एवरी मॉर्निंग यही तीन पैटर्न दिखते हैं ज्यादातर। आज आप जाके बैक टेस्ट करना कि गैप अप वाले स्टॉक्स में यही दिखता है कि कुछ नया होता है। और अगर इसके अंदर मीन रिवर्सल आया, ये टूटा, उसमें भी लास्ट चांस मिलेगा आपको, लास्ट चांस। ये थियरी मैंने आज रिलायंस में भी अप्लाई की थी, रिटर्न मिला है। तो जब आपको एक ऐसा बड़ा फ्लो दिखे और उसके बाद उसमें डाउन ट्रेंड आ जाता है, डिविस लैब में भी अभी किया, मैं भी चार्ट चार्ट शेयर करता हूं। और अगर 060 ब्लॉक तोड़ दिया, 50 तोड़ दिया, उसके बाद अगर आप फिप को ऊपर से नीचे कनेक्ट करते हो तो यहां पे एक 061 दिखता है आपको, उसका चांस है अभी शॉर्ट सेलर को फंसाने का, बायर तो फंस गए, तो वो यहां से रिवर्स करेगा। तो ये जो पैटर्न है इसको फॉलिंग वेज पैटर्न बोलते हैं, इट इज बिलो मीन। अभी हमको जो फ्लैग दिखा, पीनट दिखा, पुल बैक दिखा, वो हमको अबाव मीन दिख रहा था। अभी इसमें जो रिवर्सल आएगा वो दिन का लो नहीं तोड़ेगा,
और यहीं से रिवर्स कर जाएगा तो उसको बोलेंगे फॉलिंग वेज। इट इज शोइंग, वो दिखा रहा है कि वो गिर रहा है बट वो गिरेगा नहीं, वो यहीं से रिवर्स कर जाएगा। अब इनको डिविज लैब का चार्ट दिखाओ, डिविज लैब का चार्ट दिखाओ निकोलस। हाँ, मैं देखा। सर लेट्स ये लेट मी बोर्ड गिव यू बोल। वेरी क्लियर एग्जांपल ऑफ दैट डिविज लैब। एक मिनट, हाँ। हम्म। एक रिलायंस और डिविज लैब दिखाओ, ये मैं इनको लाइव दिखा। इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर दो, यस। ये रहा, दिख रहा है एग्जांपल। अभी इसका दिन का लो मार्क कर दो, मैकडी को हटा दो, हाँ। दिन का लो मार्क कर दो इसका, और दिन का हाई मार्क कर दो। राइट, अभी इसमें फिब प्लेस कर दो, फिब ऊपर से नीचे तक। उल्टा कर रहे हो आप, इस साइड लो। अच्छा, लेफ्ट साइड से आपको। हम्म। क्योंकि स्टॉक ऐसे ही ऊपर जाता है। हम्म। राइट, अभी इसमें एक रेशियो ब्रीच हो गया इनका, ये वाला। हाँ, ये एरिया इसने ब्रीच किया, 0618 को ब्रीच किया, ये ब्रीच किया इसने, और ये भी ब्रीच कर दिया। अभी आप लोगों को लग रहा होगा ये नीचे चला जाएगा, पर इसने दिन का लो नहीं तोड़ा है, देखो। तो ये फॉलिंग वेज पैटर्न हुआ, और यहां से इसने जो रिवर्सल दिया, अब इसने कितने पॉइंट्स कवर किए वो देखो। 48 पॉइंट्स। ये फॉलिंग वेज है, इसको फॉलिंग वेज बोलते हैं। मतलब आपको दिखेगा कि गिर रहा है बट वो गिरेगा नहीं। राइट, तो फॉलिंग वेज इज द डेडलीस्ट पैटर्न समटाइम्स इफ यू अंडरस्टैंड इट वेल। दिन का लो नहीं टूटना चाहिए, दिन का लो नहीं टूटता है, कहीं भी आपको ग्रीन कैंडल दिखती है और रिवर्सल दिखता है आप घुस जाओ। बट इसमें ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा आपको, मीन के पहले ये वापस आ जाएगा, और ये एग्जैक्ट एग्जैक्ट वहीं से वापस आ गया। है ना, ये एरिया को इसने क्रॉस नहीं किया और वहीं से वापस आ गया। अगर इसको तगड़ा ब्रेकआउट देना है तो उसको उसी एरिया से ऊपर जाना पड़ेगा, बट इस एरिया के ऊपर वो नहीं गया। दिस इज मीन रिवर्सल पॉइंट। राइट, मतलब अभी भी बायर्स को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। अगर कल इसमें मोमेंटम आता है तो इसके ऊपर ही आएगा। तो ये फ्लो एनालिसिस, अभी इसको अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो क्लियरिटी आएगी। करो तो 4 आवर, अभी इसको हटा दो पूरे को। क्या हटाना है सर? ये ये ड्राइंग हटा दो, 4 आवर के टाइम हाँ। फ्रेम पे कर देते हैं इसको। ओके, एक मिनट। मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम ज्यादा प्रीफर करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो आप अगर 4 आवर का टाइम फ्रेम क्लियरिटी समझनी है तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम। एक मिनट है सर, मेरा आई थिंक नेट थोड़ा इशू है। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है मेरे एंड पे। एक मिनट। हम्म। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। कभी कभी स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ये अच्छा रिजल्ट देके चले जाता है। आई थिंक थोड़ा डिले हो रहा है। हाँ, नेट का थोड़ा इशू चल रहा है मेरे एंड पे। यहां से होगा क्या? आपके एंड से एक मिनट, हाँ। हाँ, ओके, आगे तो से। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो, अभी यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न दिखा आपको। ये रहा डबल बॉटम पैटर्न। इज इट इजीली विजिबल? टू बॉटम्स। राइट, एक ये बॉटम हुआ और एक ये बॉटम हुआ उसके साइड में। तो दिस इज डेडलीस्ट रिवर्सल पैटर्न डबल बॉटम का। आप अगर एक्यूरेसी चेक करोगे तो सबसे हाई एक्यूरेसी वाला पैटर्न है, कोई माने कि ना माने। अभी इसके डॉट्स हम कनेक्ट करते हैं आरएसआई के साथ। अब इसमें आरएसआई डालो।
आरएसआई देखो कहां पे है अभी, अबव 50, राइट। अभी Yes. इसमें मैकडी डालो, से दिस, इज देयर एनी साइन ऑफ सेलिंग? नो। क्लियर? Yes. आपको फिल्टर प्रोसेस में जाना पड़ेगा, कोई भी शॉर्ट टर्म व्यू मत रखो। इंट्राडे ट्रेडर्स इसलिए लॉस करते हैं ना, उनको जल्दी निकल जाना होता है। बट अगर आप थोड़ा ठंडा दिमाग रख के सोचोगे कि जब मुझे कोई डर नहीं है तो मैं निकल क्यों रहा हूं, राइट? तो आप मोमेंटम को देखो। अभी तो इसने निकोल, इसको थोड़ा एक्सटेंड करो ये बॉक्स को, डबल बॉटम के साथ एक बॉक्स ब्रेकआउट की भी तैयारी चल रही है। यस, ये पॉसिबल बॉक्स ब्रेकआउट हो सकता है कि नहीं हो सकता? Correct. और वॉल्यूम भी है बड़े बड़े लास्ट में, ये रहे। अब इससे ज्यादा किसी को क्या कंफर्मेशन चाहिए, आई डोंट नो। क्लियर? आपको वॉल्यूम भी दिख रहा है, डबल बॉटम भी दिख रहा है, आरएसआई का पॉजिटिव क्रॉसओवर भी दिख रहा है, मैकडी का भी पॉजिटिव क्रॉसओवर दिख रहा है। अब बॉक्स ब्रेकआउट की भी प्रोबेबिलिटी है। और एक चीज है निकोलस, यहाँ पे ये फॉलिंग चैनल है। फॉलिंग चैनल, अगर आप ये सारे डॉट्स, हाँ, यहां से कनेक्ट करो। कैन आई टेक ओवर दिस? हाँ, बस Uh, बस ये हो गया। okay. अभी ये फॉलिंग चैनल का क्रॉसओवर हो गया। Hmm. क्लियर? ये रहा। तो ये चैनल ब्रेकआउट भी है। Hmm. अगर गलती से नीचे आता है तो रिटेस्ट देगा ये। रिटेस्ट के बाद एंट्री हो सकती है। मतलब मैकडी ने बोला, आरएसआई ने बोला, पैटर्न ने बोला, कैंडल्स ने बोला, वॉल्यूम ने बोला। अब मुझे क्या कंफर्मेशन चाहिए? दैट वी नीड टू आस्क आवर सेल्फ। अभी जब तक कोई मुझे टिप नहीं देगा मैं नहीं बाय करूंगा। राइट? अब टिप वाला भी यही सब देख के दे रहा होगा ना आपको, तो आपको खुद समझ जाना है कि मुझे क्या देख के बाय करना है। सी, यूनिवर्सल ट्रेडिंग के अंदर कुछ भी चीज नई नहीं है, हमको बस Hmm. समझना है कि अप्लाई क्या करना है। जो चीज दूसरे देख के बाय कर रहे हैं हम भी वो देख के बाय कर सकते हैं। प्रॉब्लम एक ही है कि किसी में एडप्ट करने की शक्ति ज्यादा है और किसी में एडप्ट करने की शक्ति कम है, राइट? हमको थोड़ा स्केलेबल मूवमेंट में अपना दिमाग बढ़ाना पड़ेगा कि वी नीड टू ट्रस्ट अवर प्रोसेस। क्लियर? Yes. और अभी और एक चीज, अभी निकोलस जी ने आपको जो चैनल दिखाया, अभी डाउ थियरी क्या बोलती है अपने को, तीन चैनल बनते हैं, पॉजिटिव चैनल, नेगेटिव चैनल एंड फ्लैट चैनल। ठीक है? तो अभी अगर हमें चैनल ट्रेडिंग करनी है, तो अगर नेगेटिव चैनल ब्रीच होता है तो वो पॉजिटिव हो गया, अगर पॉजिटिव चैनल ब्रीच होता है तो नेगेटिव हो गया। क्लियर? तो अगर तीन चीजें हमें समझ में आएगी। व्हाइट बोर्ड का, व्हाइट बोर्ड है क्या? एक मिनट सर. हम्म। हाँ. या, सी, एक मिनट सॉरी. ओके. देखो, अभी आप कभी भी आप ट्रेडिंग करते हो, आपको इंट्राडे के लिए क्या देखना है, डेली टाइम फ्रेम के लिए क्या देखना है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या देखना है, ये सब डाउट आप लोगों को होता होगा, राइट? क्योंकि एज अ ट्रेडर वी हैव हेल लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन अवर माइंड। तो आपको एक सिंपल चीज मैं बता देता हूं, इंट्राडे। सो फॉर डेली ट्रेडिंग, हम अगर डे ट्रेडिंग के लिए अगर हम 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट यूज करें, ज्यादा अच्छा है। और उसका कंफर्मेशन अगर कल के लिए ले जाना है तो 4 आवर से ले लो आप, दैट्स इट। क्लियर? अगर कैरी फॉरवर्ड ट्रेड करना है तो 4 घंटे में एटलीस्ट पूरे दिन का फ्लो आ गया, राइट? अगर आपको पोजिशनल लंबे ट्रेड करने हैं तो आपको कंफर्मेशन 1 आवर से लेना है, और 4 आवर एंड 1 डे चार्ट। क्लियर? और अगर आप मंथली पोजीशन में जाना चाहते हो तो वीकली चार्ट, राइट? तो व्हाट काइंड ऑफ ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन यू आर लुकिंग,
यू नीड टू बी श्योर अबाउट दैट फर्स्ट. डोंट पुट ब्लेम ऑन एनी अदर पर्सन कि भाई इसने मुझे बताया नहीं इसलिए मैं नहीं निकलूंगा. इसको रिमूव कर दो ना. ये व्हाइट बोर्ड हटाओ कि ये हटाओ? ये बॉक्स. एक मिनट। हम्म, हाँ. ठीक है. अभी मैं हम्म, आपको समझाता हूं कि ये टाइम फ्रेम को देख के समझना कैसे. अभी मान लो जब हम ट्रेडिंग करते हैं, जनरली हमको क्या क्या चीजें दिखती है. जनरली 95% ऑफ टाइम अभी हमको एक पॉजिटिव चैनल दिखता है अगर मार्केट अच्छा है. ठीक है. तो हम्म, इसमें घर पे सीढ़ी चढ़ते हैं. वो तो याद है ना कि हर रोज ऊपर चढ़ना नीचे उतरना तो होता ही रहता है. तो हमको ये सीढ़ी के पैटर्न दिखते हैं इस तरीके से. तो ये क्या बना, हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो. इन ट्रेंडिंग मार्केट ऑलवेज गो विथ फ्लो. मतलब जब भी आपको इस हाई से ये हाई बड़ा दिखता है तो ये ट्रेंडिंग मार्केट है और आपको स्टॉप लॉस यहां पे लगा के इसको फ्लो को खेलना है. क्लियर. तो दिस इज हायर हाई. हायर हाई फॉर्मेशन. सेकेंड फॉर्मेशन इज लोअर लो. दिस इज नेगेटिव मार्केट. राइट. थर्ड फॉर्मेशन इज फ्लैट फॉर्मेशन. इसके अंदर आपको इस तरीके से दिखेगा. राइट. नाउ विल लुक इन डिफरेंट मैनर. अगर हमको इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है तो हमारे पास कितने टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस है. 3 से 4 टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस है. राइट. तो अगर हम फ्लो खेल रहे हैं तो हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया. क्लियर. और अगर हम फ्लैट खेल रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या हो गया और ये हमारे लिए क्या हो गया. तो हमको इसको एसआर जोन लिख देना है. एसआर जोन. हमको नहीं पता कोई बायर है कोई सेलर है, हमारे लिए एसआर जोन है. एसआर मतलब सपोर्ट किसके लिए है, ये सेलर के लिए. रेजिस्टेंस किसके लिए है, बायर के लिए. तो यहां भी एसआर जोन हुआ, यहां भी एसआर जोन हुआ, यहां भी एसआर जोन हुआ. तो सेलर्स जनरली इस ट्रेंड में जो ट्रेड करते हैं, बायर्स इस ट्रेंड में ट्रेड करते हैं, और जिनको लॉस करना है वो इस ट्रेंड में ट्रेड करते हैं. क्लियर. हमको कभी भी ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करना है. इज दैट क्लियर. तो ये जनरल फॉर्मेशन जो रेगुलर बेसिस पे दिखते हैं वो यही दिखते हैं. इज दैट क्लियर और नॉट. यस. राइट. अभी इसका एक्सटेंडेड वर्जन क्या है जो हमको समझना है. पैटर्न्स को ऐसे ही समझा जाता है. अगर आप लोग आज कोई भी नया है या पुराना है, आई विल रिकमेंड एवरी वन, निकोलस, आप यस. पूरी टीम को है ना एक डाउ थियरी एक्सप्लेन कर दो. सॉरी सर. डाउ थियरी, डाउ थियरी. हाँ. तो डाउ थियरी में यही बताया गया है कि मार्केट ट्रेंड कैसे करता है. राइट. करेक्ट. एक फेज होता है रनिंग, एक फ्लैट फेज, एक रनिंग फेज, एक फ्लैट फेज, एक डाउन साइड फेज, फ्लैट फेज एंड डाउन साइड. करेक्ट. दिस इज सिंपल डाउ थियरी. हम्म. अगर अगर इसको थोड़ा चाइनीज भाषा में समझना है तो लोग इसको बोलेंगे एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज. राइट. राइट. कोई इसको बोलेगा बॉक्स ब्रेकआउट. हमको समझना है हमें क्या समझ में आ रहा है. हमको चाइनीज भाषा नहीं समझनी. हम्म. हमको समझना है कि हम क्या देख के ट्रेड कर रहे हैं. वो भले डारवास बॉक्स हो, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, कि हम्म. फिर वो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो, या तो लिक्विडिटी जोन हो. सबके हम्म. नाम अलग अलग है, पर कॉमन राइट. सेंस तो एक ही बोल रहा है ना कि भाई ये ब्रेकआउट है और ये ब्रेकडाउन है. क्लियर. और यहां हम्म. पे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं और ये चैनल अच्छा चल रहा है और एकदम से ब्रेकआउट हो गया तो चैनल का ब्रेकआउट हो गया. ये टूटा तो ब्रेकडाउन हो गया. क्लियर. यहां पे हम्म. क्या हुआ, अगर ये इसी तरीके से एकदम जोर से गिर गया तो क्या हो गया, ये ब्रेकडाउन हो गया. नहीं तो जो चल रहा है वो चलने दे. तो अच्छे पैसे ना ऐसी जगह पे ही बनते हैं. ऐसी जगह पे हम लोग ट्रेड करते हैं यहां पे जहां पे करना ही नहीं चाहिए. राइट. अगर आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे कोई ऐसा गुजड़ पुचड़ दिखता है तो बेट इट इज बेटर नॉट टू ट्रेड. सिंपल. राइट. बिकॉज यस. ऑलवेज रिमेंबर गो विथ फ्लो. शांत पानी गहरा होता है, ये डूब जाओगे आप इसमें. राइट. आपको जब ट्रेंड ही समझ में नहीं आ रहा है और आप यहां पे उस्ताद बनोगे तो सारे पैसे इसमें काम करने के यही ले जाएगा. समझ रहे हो बात को. यस. तो मैं क्या करता हूं, जो यहां पे ट्रेड करता है मैं उसको तेज बहादुर बोलता हूं. राइट. वी शुड नेवर एवर ट्रेड इन दिस जोन बिकॉज वी डोंट नो ना. अभी राइट. क्लियरिटी नहीं है. तो अगर इस जोन को ट्रेड करना है तो उसका भी एक तरीका है. मान लो अभी जो डिविज लैब देखा हमने,
हाँ। अगर उसमें इस तरीके से ट्रेंड दिख रहा है और डबल बॉटम दिख रहा है, तो ये एक चीज क्लियर हो गई है कि मुझे मैकडी ने आरएसआई बता दिया, आरएसआई ने बता दिया, मैकडी ने बता दिया। अभी ये मुझे समझ में आ गया कि ये डबल बॉटम है। अब ये हम्म। ब्रेकआउट देने के बाद जब रीटेस्ट देगा ना, हम्म। तब मैं इसमें घुसूंगा। करेक्ट। हेल्दी ट्रेंड का कंफर्मेशन ऐसे ही मिलता है। तो वी नीड टू फिगर आउट टाइप्स ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, टाइप ऑफ रीटेस्ट ट्रेड, राइट? हम्म। क्योंकि एक सेशन में इतना सब नहीं ले सकते, इसलिए आज आप अपने हिसाब से गूगल कर लेना, या तो फिर निकोलस इनको कुछ भी ऐसा एजुकेटिव शेयर करो कि कितने टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। हम्म। अभी तक सबको यही पता है कि ये सपोर्ट है और रेजिस्टेंस, बस ऐसा ही। ऐसा नहीं होता है। इट डिपेंड्स व्हाट फॉर्मेशन वी आर लुकिंग। यस। क्लियर? तो हम जो फॉर्मेशन देख रहे हैं उस हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस डिसाइड करना पड़ेगा। तो कितने टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, कितने टाइप के रिवर्सल है, कितने टाइप के कंटिन्यूशन है, डाउ थियरी क्या बोलती है, सब डाउ थियरी के हिसाब से ही चलता है। तो पुराने लोग बहुत सही सिखा के गए हैं, बट हमको करना सब नया नया है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा फोमो में आ गए। हमको नहीं करना है फोमो में कुछ का। क्लियर? सो अभी मैंने आपको जो भी कुछ सिखाया स्क्रीन के ऊपर, इसमें अभी मैं थोड़ा एक्सटेंडेड जोन में ले जाता हूं, ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए कि भाई पैटर्न्स को कैसे समझते हैं, राइट? फाइन। तो अभी सिंपल तरीके से मैं आपको अगर पैटर्न समझाना चाहूं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इसलिए तो कभी भी ट्रेड करने के लिए आपको एक बॉक्स बना देना है। पहले एक बॉक्स बना देना है कि मुझे क्या समझ में आ रहा है। तो मान लो कि मैंने एक बॉक्स बना दिया इस तरीके से। अब मैंने हाई डिसाइड किया, लो देख लिया। अभी ये चीज तो समझ में आ गई, ये तेजी चल रहा है कि मंदी चल रहा है, राइट? अगर तेजी चल रहा है, ये सब मिटा दो, सब इरेज कर दो। लेट मी गो वेरी इजीली, सब इरेज कर दो, राइट? हम्म। और इस सेशन को आप लाइफ टाइम याद रखोगे। अभी मान लो कि मुझे तेजी करनी है एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैंने एक बॉक्स बना देना है इस एरिया पे इस तरीके से। तो अगर तेजी है तो मुझे कुछ फॉर्मेशन ऐसे ही दिखेंगे, और मंदी है तो मुझे कुछ फॉर्मेशन इस तरीके से ही दिखेंगे, राइट? इसका मतलब है पैटर्न क्या है, ट्रेडिंग का पैटर्न क्या है? ये बुलिश पैटर्न है और ये बैरिश पैटर्न है। क्लियर? अब पैटर्न कितने टाइप के होते हैं? एक बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न होता है, मतलब चालू है, चालू रहेगा, उसको बोलते हैं कंटिन्यूशन पैटर्न। जैसे मैं मैराथन में दौड़ रहा हूं, मैं पानी पीने के लिए रुका, पर मैं दौड़ता ही रहूंगा, मैं रुकूंगा नहीं जब तक एंड लाइन नहीं आ जाती। तो ये हमारी एंड लाइन है, राइट? मैं मंदी में हूं, मैं मंदी में ही रहूंगा, तो ये मंदी वाला कंटिन्यूशन पैटर्न हो गया। क्लियर? अब कंटिन्यूशन पैटर्न कितने टाइप के हैं, हमको वो ज्यादा देखना है। जो कॉमनली दिखता है मैं उस पर डिस्कस ज्यादा करूंगा। तो पहला जो फॉर्मेशन है कंटिन्यूशन पैटर्न है, उसको हम बोलते हैं पुल बैक। सबसे पहला आएगा पुल बैक, जो हमेशा आपको 915 से 950 के अंदर ही दिख जाएगा। 915 से 930 के अंदर आपको पुल बैक दिख ही जाना चाहिए, और आपको ज्यादातर ये दिखेगा गैप अप वाले स्टॉक्स के अंदर। निकोलस, आप इसका बैक टेस्ट करवाना इनसे। ठीक है। तगड़ा रिटर्न है, ठीक है। गैप अप में हैरी पॉटर याद रखो, ये एन पैटर्न बोलते हैं इसको। हम्म। पोल नेवर सस्टेन्स, जब भी कुछ गैप होगा वो नीचे आएगा ही आएगा, और उसके बाद जो एंट्री मिलेगी आपको, आपको दिन के टॉप पे बुक कर सकते हो इसको। ये पहला ट्रेड हुआ। अभी दूसरा कंटिन्यूशन में क्या आएगा? अभी इसने रैली दे दी, अब ये अगर बॉटम पे आता है, मतलब इसके टॉप को तोड़ नहीं पाता है, तो ये क्या बना? एक्सटेंडेड चैनल बनना शुरू हो गया, राइट? ये रोज सुबह दिखेगा। अगर गैप डाउन होता है तो इसका उल्टा, ये रहा। क्लियर? पहला ये। दूसरा, दूसरा पैटर्न आपको दिखेगा फ्लैग का। अगर दिन का हाई क्रॉस नहीं कर पा रहा है और मीन को भी नहीं तोड़ पा रहा है, तो ये स्टॉक इस तरीके से टाइम पास करना शुरू कर देगा, और इसके सारे फॉर्मेशन नीचे की साइड होंगे, ये फॉर्मेशन भी नीचे की साइड होंगे, बट ये मीन को नहीं तोड़ेगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो ये फ्लैग हो गया। तो इसमें अगर आपको एंट्री ली तो फ्लैग ब्रेकआउट ये हुआ आपका। आपका ये फ्लैग ब्रेकआउट नहीं होगा, आपको यहां पे एंट्री लेके यहां पे एग्जिट कर देना है।
ये दूसरा पैटर्न बन सकता है। तीसरा प्रोबेबल पैटर्न कौन सा बनेगा आपका? तीसरा प्रोबेबल पैटर्न आपका बनेगा पीनट का। पीनट इससे भी डेंजर पैटर्न है। तो पीनट में आपको नीचे आने के बाद एक हायर फ्लो दिखेगा, लोअर फ्लो दिखेगा, पर वो इसके नीचे नहीं जाएगा। हायर फ्लो, लोअर फ्लो, हायर फ्लो, लोअर फ्लो, बट ऑल दिस हायर फ्लो वुड बी लोअर देन ईच एंड एवरी वन। और ये हायर फ्लो इससे और इस तरीके से ब्रेकआउट देगा। तो ये पीनट का ब्रेकआउट हुआ। तो बुलिश पीनट, फ्लैग and pull back, these are three deadly pattern you will see each and every morning in each and every gap up gap down stocks, right? गैप डाउन में आपको इसका उल्टा दिखेगा पीनट। ये आपको इस तरीके से फ्लैग दिखेगा, या तो आपको बैरिश पीनट दिखेगा इस तरीके से। ये तीन पैटर्न बहुत कॉमन है अर्ली मॉर्निंग के लिए। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस, राइट? अभी इसके बाद अगर हम और एक्सटेंडेड जोन में जाते हैं, मैं इसको हटा देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी आएगी। अगर इसने मीन को तोड़ दिया, ये सबका कनेक्शन मीन के साथ है। अगर इसने मीन को तोड़ दिया तो क्या करेगा? अभी मान लो कि ये एक फ्लो बना, उसके बाद वो नीचे आया, तो अपने फिब मैंने ऊपर से नीचे तक कनेक्ट कर दिया। अब ये मेरा मीन रेशियो है। मीन के ऊपर जो बनना था वो, ये पहला फ्लो आएगा आपका 0,618 रेशियो से, ये पहला फ्लो है। ये दूसरा फ्लो है, ये मीन के ऊपर। अभी तीसरा फ्लो यहां से आएगा जो मैंने डिविज लैब के अंदर आपको दिखाया, ये वाला। ये फॉर्मेशन यूएस के एक ट्रेडिंग फ्लोर के अंदर सिखाया गया था, और इसमें उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट निकाला है। फर्स्ट रिवर्सल पॉइंट इज पुल बैक, सेकंड रिवर्सल पुल बैक इज फ्लैग और पीनट, राइट? थर्ड रिवर्सल पॉइंट इज दिस गोल्डन रेशियो के नीचे जाने के बाद ये आपका फॉलिंग वेज आएगा। दिस इज फॉलिंग वेज। ये चार कॉमन पैटर्न आपको रोज सुबह दिखते हैं, कुछ नया नहीं दिखता है। इसका उल्टा कर दोगे तो ऐसा होगा, 1 2 अबाउ मीन 3। तो ये राइजिंग वेज हो गया। दिस इज राइजिंग वेज, दिस इज पीनट और दिस इज पुल बैक, सब मीन के नीचे। इज दैट क्लियर? सिंपल है कि कुछ डिफिकल्ट लगा इसके अंदर आपको? बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आई थिंक थोड़ा एक्सटेंडेड जोन में चला गया। राइट? अभी कोई बात नहीं, ये हम कंटिन्यूशन पैटर्न के बारे में ही देख रहे हैं। अभी इसके बाद हम देख लेते हैं, इसको 25 बार देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब रोज कनेक्ट कर लोगे तो आ जाएगा। ठीक है? अभी और एक चीज देखते हैं हम, कंटिन्यूशन पैटर्न के बाद क्या होता है। कंटिन्यूशन पैटर्न के बाद कभी भी रिवर्सल पैटर्न आता है, मतलब तेजी बहुत भयंकर चल रही थी, अभी सडनली रिवर्स होगा। तो अगर मान लो कोई भी स्टॉक इस तरीके से ऊपर चल रहा है और एक डेड एंड आ गया, उसके बाद वो क्या करता है? उसके बाद वो रिवर्सल दिखाता है, राइट? तो रिवर्सल पैटर्न कितने हैं हमारे पास? हमारे पास रिवर्सल पैटर्न कितने हैं? 3 से 4 कॉमन रिवर्सल पैटर्न है जो डेली होते हैं हमारे पास। तो हमको रिवर्सल पैटर्न समझने हैं। तो पहला रिवर्सल पैटर्न जो डेडली है वो डबल टॉप है, बट दिस टॉप कैन बी लोअर देन दिस। तो ये डबल टॉप पैटर्न का नेकलाइन और ये नीचे गिरा। तीसरा आएगा डिसेंडिंग चैनल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है? उसके बाद आपको दिखेगा हेड एंड शोल्डर्स। ये सारे रिवर्सल पैटर्न है। इसी का अगर उल्टा कर दो, ये टॉप से बॉटम के लिए है, टॉप से बॉटम आएगा इसमें, ठीक है? अगर इसका उल्टा करना है तो डबल बॉटम आएगा और ये एक्सटेंडेड इस तरीके से चला जाएगा, ट्रिपल बॉटम इस तरीके से जाएगा। ये सारे कंटिन्यूशन पैटर्न, ये रिवर्सल पैटर्न है, मैं कंटिन्यूशन नहीं बता रहा हूं। अभी रिवर्सल के अंदर ये सारे डेडली पैटर्न है। अभी इनको निकोलस एक नेचुरल गैस का चार्ट दिखा सकते हो क्या आप? हाँ, एक मिनट। अभी लाइव चल रहा होगा, लेट्स रिलेट दिस। नेचुरल गैस का चार्ट निकालो, नेचुरल गैस। फ्यूचर देखना है ना सर? या अभी इसको है ना आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कर दो। ओके, ये, हम्म। फाइन। अभी यहां पे आपको क्या क्या दिख रहा है वो बताऊं? चैनल बॉक्स बना रहे इधर। यस,
आपको कहीं पे हेड एंड शोल्डर दिखा? 5 मिनट करो तो इसमें 5 मिनट्स करो तो 1 मिनट, ओके। 5 मिनट का टाइम फ्रेम करो तो। हम्म, हाँ, और थोड़ा पीछे जाओ, पीछे 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 पीछे, कल जहां से गिरा था। अच्छा, ओके ओके। हाँ, अभी या, यहां पे देखो, इसने कुछ भयंकर सा पैटर्न बनाया है। हाँ। हेड एंड शोल्डर दिखा? ये हेड एंड शोल्डर है। इसको थोड़ा सिंक्रोनाइज कर दो अभी, छोटा करोगे तो अच्छे से दिखेगा। ओके। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना है, देखो। दिखा कि नहीं दिखा? यस। साफ साफ दिख रहा है हेड एंड शोल्डर। करेक्ट। राइट, और अभी किसी को अगर इसमें तेजी लग रही है तो वो लॉस करेगा। अभी इसमें निकोलस, पता है, इसमें ये फॉलिंग राइजिंग वेज बन रहा है। राइजिंग वेज बन रहा है, हाँ ऐसा। ओके ओके। यस, तो इसमें ट्रैप नहीं होना है। यस, दिस इज राइजिंग वेज, क्योंकि उसका पिछला जो फ्लो है वो नेगेटिव है। यस, दिस इज राइजिंग वेज। अगर इसको देख के आप बाय करोगे तो फंस जाओ। क्लियर? यस। और यहां पे कहीं डबल टॉप दिखा आपको? हेड एंड शोल्डर का जो शोल्डर है ना, शोल्डर, वहां पे देखो डबल टॉप है। यहाँ ये पे रहा। बोल रहा हूँ। हाँ, ये दो डबल टॉप है। हाँ, आई थिंक छोटे इसमें जाना पड़ेगा। यहाँ पे। बहुत सारी चीजें हैं जो हमको बारीकियों से देखनी पड़ती है, बट अगर देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। यहाँ डबल टॉप, ट्रिपल टॉप सब दिखाया आपको। और इसमें कल जो ट्रेजेडी हुई है वो 18 रुपीज प्लस से 9 रुपीज माइनस हो गया। बट जिसको मीन समझ में आता है, फॉर्मेशन समझ में आता है, वो गलती नहीं करेगा। अभी इसमें किस एंगल से आपको बाइंग दिख रही है बताऊं? अगर इसमें अगर फिब यूज करना है, इसके लोअर से हायर कनेक्ट करो फिब को। यस, अभी जब तक ये मीन को क्रॉस नहीं करेगा, इसके नीचे कुछ भी दिखाता है उसको ट्रस्ट ही नहीं करना है। कोई इंडिकेटर को भी ट्रस्ट नहीं करना है। राइट, अभी आपको मैकडी बोलेगा बाई करो, रॉन्ग, नहीं करूंगा मैं बाई। आरएसआई बोलेगा बाई करो, नहीं करना है। राइट, देखो इसमें, देखो दिख रहा है, ये आपको ट्रैप क्रिएट किया जा रहा है। ये रहा। बट यहाँ पे कहाँ कहाँ बाइंग दिख रही है? राइट, तो यूजिंग indicators in wrong direction will never support you. So when not to trust indicator, when it is not in your control, जब ट्रेंड के अगेंस्ट इंडिकेटर जा रहे हैं तो हमको नहीं करने का है उस पर ट्रस्ट। वेरी क्लियर, नेवर ब्लेम एनी इंडिकेटर। अभी यहाँ पे आपको, यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर दिखा? ये देखो, यहाँ पे जब इसने 60 को तोड़ा और यहाँ पे मैकडी ने नेगेटिव क्रॉसओवर दिया, 60 को तोड़ने के बाद मैकडी ने नेगेटिव क्रॉसओवर दिया है, देखो। ये भी बहुत डेडली सेटअप है, इसका भी आप जाके आज बैक टेस्ट करना, शायद बहुत बहुत भयंकर रिजल्ट मिले आपको। हाँ, आरएसआई 60 तोड़ रहा है और मैकडी का नेगेटिव क्रॉस ओवर है। ऊपर से यहाँ पे इनवर्स भी, हेड एंड शोल्डर भी बना। तो तीन तीन नेगेटिव कंफर्मेशन है, एक नहीं तीन नेगेटिव कंफर्मेशन है। और ऊपर से मीन को भी तोड़ दिया। अब क्या, अब नेचुरल गेस खुद आके बोलेगा आप मुझे बेच दो। राइट, तो हमको मल्टीपल एंगल से अगर चेक करते हैं तो हमको क्लियरिटी ज्यादा आती। क्लियर? चलो अभी इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, अभी लास्ट पॉइंट पे जहां पे हमको लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप समझना है। ठीक है, मैंने इंडिकेटर्स का इफेक्टिव यूज दिखाया, आपको पैटर्न्स का इफेक्टिव यूज दिखाया। अभी निकोलस, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिनको लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप समझना है। और जनरली लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप बहुत अच्छी टेंडेंसी है मार्केट के डायरेक्शन को जज करने की। तो ये जो डेटा है ना, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। राइट, तो अभी आप लोगों को एक चीज समझनी है
कि मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप का मतलब क्या होता है। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब होता है तेजी, राइट। अभी मेरे को व्हाइट बोर्ड चाहिए तो मैं इसको एक्सप्लेन अच्छे से कर सकूं, हाँ, एक एक मिनट। हाँ, ताकि ये आज के बाद ये गलती ना कर पाए, करेक्ट। राइट। सी देखो, आप लोग एक चीज समझो, यहां पे भी मैं डाउ थियरी क्यों अप्लाई करूंगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा। एक चीज होता है, लोग बाई कब करते हैं, राइट, जब मार्केट में रिवर्सल दिखता है, राइट। यस। मार्केट में रिवर्सल दिखता है तब बाई करते हैं, पर रिवर्सल कहां से आ रहा है वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना, ऊपर से आ रहा है कि नीचे से आ रहा है, करेक्ट। राइट। सो एट फर्स्ट अवर परसेप्शन इज ड्रॉइंग अ लाइंस, इधर इट इज लोअर साइड। एक मिनट, इसमें क्या कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। येलो कर देता हूँ, चलो, ये दिख ही नहीं रहा है। नहीं नहीं, ब्लैक रखना पड़ेगा। हाँ, चलो, देखो अभी मार्केट अगर नीचे से रिवर्सल हो रहा है, हो गया, मार्केट नीचे से रिवर्स हो रहा है, तो आपको एक डेटा दिखेगा, उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। क्लियर, मतलब मैंने कुछ शॉर्ट किया था और वो रिवर्स हो रहा है, तो मैं शॉर्ट कवर कर रहा हूं, शॉर्ट कवर कर रहा हूं। तो यहां पे आपको अगर चीजें घूमती हुई दिख रही है तो उसको शॉर्ट कवरिंग के डेटा बोलेंगे। शॉर्ट कवर करना मतलब नीचे से रिवर्स होना। क्लियर, तो जब नीचे से चीजें रिवर्स होती है, तो जो मंदुड़िए होते हैं जिन्होंने शॉर्ट किया है, पीपल हु हैव शॉर्टेड एट दिस प्लेस विल एग्जिट एट दिस प्लेस, राइट। तो जिन्होंने शॉर्ट किया है उसका ओपन इंटरेस्ट यहां पे ग्रीन था, और अब ये रिकवरी मोड पे जा रहा है तो इसका ओपन इंटरेस्ट रेड हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो शॉर्ट किया था उसमें से अभी मुझे पैसे मिल गए तो मैं एग्जिट कर दूंगा, मतलब मैं शॉर्ट कवर कर रहा हूं। इसको बड़ा छोटा मत करो निकोलस, कौन कर रहा है, ओके। वो इज डूइंग, राइट। इसको हम्म। शॉर्ट कवर कर रहा हूं मैं। शॉर्ट कवर का क्या मतलब होता है, ये रिवर्सल मोड पे जा रहा है, हम्म। तो शॉर्ट कवर विल ओपन इंटरेस्ट आपको हमेशा रेडी दिखेगा। हम्म। क्लियर, और जब ये शॉर्ट कवर होने के बाद एक जोन पे आ जाएगा जिसको मैं मेन रिवर्सल पॉइंट बोलता हूं, वहां पे आपको लॉन्ग बिल्डअप दिखने लगेगा। तो शॉर्ट कवर विल टर्न इनटू लॉन्ग बिल्डअप, बट शॉर्ट कवर इज जनरली फॉर्म्ड बाय रिवर्सल पैटर्न्स, data and market structure, right? So short cover will turn into long buildup above mean, and the long buildup will go to extended points. तो यहां पे long buildup में OI हो जाएगा आपका ग्रीन, ठीक है, और हम्म। शॉर्ट कवर का OI हो जाएगा रेड। हम्म। तो शॉर्ट कवर विल टर्न इनटू लॉन्ग बिल्डअप, आई एम रिपीटिंग ऑल दिस अगेन, शॉर्ट कवर विल टर्न इनटू लॉन्ग बिल्डअप। तो जहां भी शॉर्ट कवर दिखे, इट इज टेंडेंसी ऑफ रिवर्सल, तो रिवर्सल आपको पॉजिटिव रिवर्सल दिखेगा, ठीक है। तो शॉर्ट कवर हमेशा लॉन्ग बिल्डअप में कन्वर्ट हो जाता है। अभी यहां पे जो पिक्चर चेंज हुआ है, इसके बाद लॉन्ग बिल्डअप के बाद आपको एक जोन दिखेगा जहां पे मार्केट सैचुरेट होने लगता है। क्लियर, तो अभी लॉन्ग बिल्डअप वाले क्या करेंगे, यहां पे लॉन्ग बिल्डअप वाले यहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग करेंगे, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग में ओआई रेड हो जाएगा। क्यों ओआई रेड हो जाएगा, अभी इनका इंटरेस्ट खत्म हो गया भाई। तो यहां पे ओआई किसका रेड हुआ, जो हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर हैं, जो कॉल पुट बाय करते हैं, उनका ओआई रेड हो जाएगा यहां पे। तो अगर आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग का डेटा दिखता है और अगर आप कॉल बाय करते हो या पुट बाय करते हो, तो 80% यू विल लूज योर मनी, राइट। तो अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पे अगर आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखता है तो वो नीचे आ जाएगा, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग विल टर्न इनटू शॉर्ट बिल्डअप। अब जब लॉन्ग अनवाइंडिंग का ओआई रेड हुआ, ओआई रेड होता है, तो क्या होता है, अभी शॉर्ट बिल्डअप का ओआई ग्रीन हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो पहला डेटा शुरू कहां से हुआ, शॉर्ट कवर से। शॉर्ट कवर विल टर्न इनटू लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप विल टर्न इनटू लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग विल टर्न इनटू शॉर्ट बिल्डअप। बिल्डअप। तो दिस डेटा मूव्स लाइक दिस एंटायर डे। निकोलस, इनको लॉन्ग शॉर्ट का डेटा दिखा दो। हाँ, देखा। और ये डेटा आपको लाइव ट्रेड स्मार्ट की वेबसाइट पे भी दिखता है, बहुत जगह दिखता है, बट अगर यहाँ पे लाइव दिख जाए तो कैसा रहेगा, इनको लाइव दिखा दो। यस।
किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको ये सब एसेस मिल रहा है, ये पहले ये डेटा का स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है, ये बहुत बहुत कीन डेटा है, जहां से आपको तेजी करने को मंदी करने को प्योर डेटा मिल जाता है, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। अभी इनको अपने वेबसाइट पे दिखा दो कि कैसे लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप डेटा एनालाइज करते हैं, और कैसे आपको तुरंत पता चल जाए कि कहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, कहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। करेक्ट। तो हमारे वेबसाइट पे जैसे आप लॉग इन करोगे वेब पोर्टल पे, यहाँ पे स्कैनर का ऑप्शन आएगा। एंड यस, स्कैनर में, इन स्कैनर यू कैन क्लिक ऑन लॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप। सी दिस इज ग्रेट डेटा टू ट्रेड, आपको कुछ भी माथा दौड़ाने की जरूरत नहीं है, ट्रेडर्स खुद ही बोल रहे हैं इसको बाय करो, एंड राइट? फ्रॉम आपको देयर प्राइस, यू कैन फिल्टर आउट, आपको अगर इंडेक्स में करना है या स्टॉक में करना है, यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हैं। फॉर नाउ हम स्टॉक्स का देख रहे हैं। ये अभी स्टॉक्स का है, राइट? यस। वैसे इंडेक्स में भी दिखेगा आपको। यस। क्लियर? तो अभी यहाँ पे जो लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है वो स्टॉक्स में आपको तेजी करनी है। और लॉन्ग बिल्डअप में ओआई ग्रीन होता है, प्राइस भी ग्रीन होता है, वॉल्यूम भी ग्रीन होता है। और वही चीज अगर शॉर्ट बिल्डअप में जाओगे तो प्राइस नीचे जाएगा, ओपन इंटरेस्ट ग्रीन हो जाएगा, राइट? प्राइस यस। नीचे जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट ग्रीन हो रहा है, तो ओआई यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा और प्राइस नीचे जाएगा। अभी शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग का डेटा है, वहां पे आपको दोनों ओआई भी रेड दिखेगा और प्राइस में भी बहुत बड़े चेंजेस आ जाएंगे। ये देखो, शॉर्ट कवर का क्या मतलब है? रिवर्सल। क्लियर? लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब है रिवर्सल। तो आप दो चीज याद रखना, प्योर डायरेक्शन है लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप, और रिवर्सल है शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। इज दैट क्लियर? और ये डेटा जितना हो सके देख के ट्रेड करना सीखो, क्योंकि आपको हर चीज के लिए स्कैनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लाइव डेटा इन लोग ने इतना मस्त, हमारे टाइम पे तो ये सब था भी नहीं। ये तो अभी आप नसीब वाले हो, आपको ये सब मिल रहा है। राइट? पहले सब कुछ टिप्स पे चलता था, बट अभी अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो नॉलेज इज पावर। आपको ज्यादा रिफाइंड प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके सामने सब तैयार डेटा मिल रहे हैं। क्लियर? इनको ऑप्शन में भी दिखा दो ना ये, हाँ, इंडेक्स दिखाता हूँ। ऑप्शन में। हाँ, ये इंडेक्स ऑप्शंस है। आप हम्म, इंडेक्स ऑप्शंस में भी यहाँ पे फिल्टर करके देख सकते हैं। ये आप ऑप्शन स्टॉक्स में भी देख सकते हैं। फ्यूचर इंडेक्स एंड फ्यूचर स्टॉक, सब डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। वेरी इजी। यस। अपने यहाँ पे पीसीआर का डेटा दिखता है क्या? एक मिनट सर। पीसीआर का फिलहाल नहीं है, बट यू ये कैन रहा। सी द, नहीं, आपको दिख गया ये पीसीआर, रेशियो, यहाँ पीसीआर ही है। पीसीआर अगर देखना है ना तो वी हैव इंस्टा ऑप्शंस यस, दिस इज वेरी इंटीग्रेटेड। गुड, सी दिस। यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप साफ साफ दिख रहा है। यस। दिस वेरी गुड थिंग, वी कैन सी ऑल दिस एट दिस प्लेस। यस, एंड पीसीआर अगर आपको देखना है आप इंस्टा ऑप्शंस पे देख सकते हो। ये रहा, राइजिंग क्लियर। पीसीआर वी नीड टू बाय, सेल डाउन पीसीआर वी नीड टू सेल, राइट? व्हाट इज पीसीआर? पुट कॉल रेशियो, राइट? तो टेंडेंसी क्या है? पीसीआर जब भी 0.9 से अगर 1.2 के अंदर है तो इट इज टर्निंग बुलिश, और अगर 1.4 से ऊपर से नीचे आ रहा है तो इज गोइंग बैरिश, राइट? तो जब पीसीआर 0.9 के नीचे होता है तो हमको अग्रेसिव नहीं रहना चाहिए इतना। तो हमको पीसीआर का रेशियो अगर इधर दिख रहा है लाइव, तो वी शुड अंडरस्टैंड द डेटा। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इंटीग्रेशन है ये थर्ड पार्टी हमारे पास। तो आप इस पे ऑप्शंस का पूरा देख सकते हो। ये सारा सारा चीज आ गया। सारा चीज यहाँ पे है, ऑप्शंस का चार्ट भी देख सकते हो आप। ठीक है। ट्रेंडिंग ओआई भी है। यहाँ पे आपको सेंटिमेंट पता चलेगा, कॉल में ज्यादा हो रहा है या पुट में हो रहा है, यहाँ पे क्लियरली चार्ट में दिख रहा है। तो आप यस, यस। यहाँ पे ऑप्शन चेन भी आप देख सकते हैं। एंड जैसे सर ने बोला, आप मेन आपको जो चाहिए लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप सब यहाँ पे दिख जाएगा। वेरी क्लियर इट है, वेरी क्लियर। वी शुड नॉट गो फॉर एनी फिल्टर प्रोसेस इफ ऑल दिस इज अलोंग विद अस। और इसमें भी आप एक चीज याद रखो, जिसमें 1.5-2% बढ़ा है और 1.5-2% घटा है ना, उसी में हाथ मारना है, सब जगह हाथ नहीं मारना है, राइट? ये टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में देखो 2% चेंज है, तो उसमें आपको ट्रेंड दिखेगा अच्छा खासा, ओआई दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है। अब आपको क्या चाहिए इतने साफ साफ डेटा के बाद भी? यस। है ना?
दिस इज वेरी गुड थिंग टू सी ऑल दिस एट वन प्लेस। और यहाँ पे इंडेक्स भी सारे आपको फिल्टर में दिख ही रहे हैं, राइट? ओके चलो ठीक है। नाउ क्वेश्चन एंड आंसर अगर किसी को पूछना है तो मैंने आपको काफी कुछ समझा दिया है। सर, अगर किसी को एक बार, पूछना, सॉरी सर कट कर रहा हूँ। एक बार ट्रेड स्मार्ट का मैं एक टूर दे देता हूँ क्लाइंट्स को, श्योर श्योर, एंड डेफिनेटली। देन वी कैन हैव द Q&A। आप सर यस को यस पूछ सकते हो। डेफिनेटली। और सबके क्वेश्चन आंसर हम सुनेंगे। यस, तो जस्ट स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने 4 बजे भी बोला था, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर सेशन दैट वी हैव होस्टेड। दिस सेशन हैज बीन होस्टेड बाय ट्रेड स्मार्ट सिक्योरिटीज। Okay, my name is Nicholas Montero and I'm working as a product evangelist for TradeSmart. Okay. This is just a brief introduction of TradeSmart Securities. For those who are not aware, we have been a member of NSE since 1994, for 30 years and more, and we are still there in the broking business. So it's a long legacy. I think many people might be even younger than 30 years, and we are there in the business from a long time. More than 12 lakh, 2 lakh customers we have. Okay, this is our turnover. And we are also in the discount broking business now. First, we were full into service broking, and now we are into discount broking as well. So this is what we have seen, जो हमने देखा है अभी प्रॉब्लम जो नए ट्रेडर्स फेस करते हैं। एक होता है हाई ब्रोकरेज। ये बहुत बार लोग इतना ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके वजह से एक्सपेंसेस में ही उनका प्रॉफिट्स कम हो जाता है। ठीक है। निकोलस, और एक चीज, हाँ। इनको ब्रेक इवन पॉइंट अगर समझा सकते हो तो। ऑप्शंस का बोल रहे हो आप? किसी किसका? भी ट्रेड में ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, बिकॉज ये भी एक बहुत बेयर मिनिमम चीज है समझने के लिए। इसके सर, बाद आप समझा देना कि कोई भी चीज लेके बेचने से ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर निकलना क्यों जरूरी है। ओके, ठीक है सर, ये पहले कंटिन्यू करते हैं, फिर हाँ। आई थिंक आप ही बता दो, बेटर होगा। ठीक है। ठीक है ठीक नहीं, आप अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो इसलिए। ठीक है। है। ओके, सो लाइक आई सेड, ये हमने प्रॉब्लम नोटिस किया है नए ट्रेडर्स जो फेस करते हैं। एक होता है हाई ब्रोकरेज, जिससे मैंने बताया था, एंड एक है ह्यूमन सपोर्ट नहीं अवेलेबल है काफी ब्रोकर्स के पास। लोग क्या यस यस, चैट बॉट्स देते हैं, और मेजर आपका प्रॉब्लम है वो। मेल करना पड़ता है और आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। ठीक है। प्लेटफॉर्म्स काफी कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, बहुत टफ टू यूज फॉर बिगनर्स स्पेशली। समझ में नहीं आता चार्ट कहाँ देखे, क्या इंडिकेटर डालना है। और एक और जो मेजर इशू है वो है चार्टिंग भी लिमिटेड अवेलेबल रहता है, आपको पे करना पड़ता है और एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए। ये तो हमारा ट्रेड स्मार्ट में हमने ये सॉल्व करने को देखा है, रिटेल ट्रेडर्स के लिए स्पेशली। ब्रोकरेज हम 15 पर ऑर्डर ही अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स सिमिलर रखा है, ओनली 15 रुपीज है। एग्जीक्यूशन काफी फास्ट है, ठीक है। एंड रियल ह्यूमंस, मतलब हमारा जो टीम है, कस्टमर सपोर्ट टीम है, आप कभी भी कॉल करके यू कैन आस्क इफ यू आर फेसिंग एन इशू एंड ऑल। तो ये बहुत मेजर यूएसपी है हमारा। कस्टमर सपोर्ट टीम अवेलेबल है फेस टू फेस, आपको मेल या कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस आप हमारे साथ, यू कैन ज्वाइन अस एंड यू कैन ट्रेड विद अस। ये हमारे ऑफरिंग्स है, जैसे मैंने बोला 15 पर ऑर्डर हम चार्ज करते हैं, ठीक है, अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स। और कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, सिर्फ यही चार्ज है। दिस इज द प्लान, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है अभी आप ले सकते हो ये प्लान का। आई जस्ट वॉक यू थ्रू सम ऑफ आर कूल फीचर्स जो आपको लगे, आपको हेल्पफुल आए ट्रेडिंग में। ठीक है। एक दो फीचर हम थोड़ा कवर कर लेंगे, तो आपको भी पता चलेगा हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या है, उनसे फीचर्स है एक्स्ट्रा जो काफी लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे अभी भी। एक है स्कैल्पर मोड। ओके, दिस इज स्कैल्पर मोड, दिस इज बेसिकली इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग काफी लोग करते हैं अभी। मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन इंडेक्स ऑप्शन बाइंग। ओके, सो दिस वी आर फीचर वी आर मेड फॉर दैट। ओके, यहाँ पे मैंने मेंशन किया ऑलरेडी। अगेन, ये काफी डिस्काउंट ब्रोकर्स नहीं प्रोवाइड कर रहे अभी भी। मेनी ब्रोकर्स आर नॉट गिविंग दिस, एंड many people are trading in Sensex and Nifty options. So this is very helpful for that. These are just snippets of it, how it looks on the mobile. तो बेसिकली इफ यू आर Great. ट्रेडिंग इन सेंसेक्स और निफ्टी, क्या होता है कि आपको सेंसेक्स का भी चार्ट देखना है, फिर कॉल का अलग से, फिर पुट का अलग से चार्ट देखना है। सही बात है। तो दिस इज वे ये व्हाई। सब इन्वायरमेंटल इशू है। यस, करेक्ट। खाते खाते ट्रेड करना है। या, हाँ, तो तो ये सब इसके एक जगह वजह दिख से गया। हमने एक जगह पे ही ये प्रोवाइड कर लिया।
So you can see Sensex call, put all three charts together. Whichever call you are trading in or put you are trading in, you can see it along with the underlying spot only. And आप quantity सब decide कर सकते हो. Like you see here, whatever quantity you want, which expiry you want, everything you can decide by default only. Okay, so very easy. Positions. So normally what happens है लोग ट्रेड करते हैं फिर अलग से ऑर्डर बुक पोजीशन बुक ओपन करना पड़ता है ठीक है अगेन यू हैव टू जगल बिटवीन डिफरेंट विंडोज so here we have made it like you see these are icons here down. Below the chart only you can see your positions and orders also. So very simple this setup. This is for option buyers we have made this. You can't sell options using this because more people are into option buying now and capital be limited रहता है especially retail traders का. So we have created this product for that. So you can join with us and you can use this product. Okay, and these are all the we have given the option जो भी active indices है जिसमें trading होते हैं future ये options में you can just select your favorite one and you are good to go. Okay. Second most important which we have noticed again is trailing stop loss. This feature is again not provided by many brokers. So clients come to us saying कि trailing stop loss का feature हमको चाहिए and all. बस बहुत लोगों को ये काम आता है ट्रेडिंग में बस क्या होता है many times we keep a target and we keep a loss. Yes, बट yes, yes. मार्केट क्या करता है वो टारगेट आने से पहले ही रिवर्स हो जाती है so that is when trading stop loss will come into help for you. So this is another feature. So for now we'll not go into detail what it is. Okay, you all can I think get back to us if you all have any concerns. Trailing stop loss क्या होता है? But the knowledge is available and like I said we have a customer support team. We can connect one-on-one for that. So this is another important feature that we are providing. This is how order window looks. Okay, like you see, you can add your stop loss target directly. Okay, आपको अलग से so what people do is many newcomers are not aware. वो क्या करते हैं? First they will put a price for buying, then again for stop loss, then again for target. Okay, but in our what we have done is we have solved this issue. All three orders you can place together. Your entry also, your exit also, and your buying price. Everything like sorry, your loss price, your target price, and your entry price. All three orders you can just put it together. So you can use a percentage like sir showed in a today, most stocks are on an average basis 2% to 1% they move in a day. So based on that criteria, we have given the percentages for intraday trading. So you can use this as well. So trailing stop loss, very important feature, especially for Yes, yes, this beginners. is very good. Beginners, they come, they think ki, arey, because we see and get knowledge on YouTube and we see many foreign influencers, they talk about trailing stop loss. But then when we come in Indian markets, we see that many brokers are not providing this. So how do we use it? So that is why we have this feature. You can use it, right? This is another, this is more of an enhancement that we have done. Okay, the trade management hub, we call it. Okay, instant trade management hub. So this is how it looks. So this is fruitful for people who are doing high volume trading because there are some people they have multiple positions and multiple orders at one time. Like they will take trade in Reliance, HDFC Bank, multiple. And some people have limited capital, they'll just take positions in one or two stocks only. But this is for high volume traders. So what exactly this is solving is, so like you see here, you can just hover around on the quantity and change it instantly. Like let's say market में कुछ bad news आ गई, okay, ऐसा ना हो, but अगर ऐसा हुआ तो काफी बार stocks just crash, start falling down. Then अगर आपके 10 trades खुले हैं at once, it's very difficult to manage, right? Because आप एक एक करके जाके या order book में change नहीं करने वाले हो. Like exit करो एक position फिर दूसरा फिर तीसरा, इतना time नहीं है हमारे पास. जब एक war होगा या कुछ होगा, कुछ ऐसा bad news आए, market will crash, right? So for Yes. that we have made this enhancement. You can from here only directly exit using the cross button. If you want to add more, you can add more as well. You can change the quantity, price, everything in one click only. You don't have to go individually in every stock and do it. Okay, very easy. Like you see all these buttons. You can reverse your position as well. This is the best thing that we are offering. Okay. तो many people उनका क्या होता है एक एनालिसिस रहता है कि ये स्टॉक आज ऊपर जाएगा बट लेट्स से इट डिडंट हैपन right? Like I said, maybe some bad news has come. You were very bullish today, but suddenly a war broke out between India and Pakistan. You know now the stocks will fall.
So you can just reverse your position. Instead of canceling out or exiting, you just reverse your position. So instantly press the reverse position for all stocks and make a short position. So this again will help you in your trading. So this is the instant management hub that we have created. You can exit all positions just using the X button. It's very fast. So this you can use in your trading. Then last but not the least, trading view, because many people like to use trading view, but फ्री वाले में काफी लिमिटेशंस रहती है ट्रेडिंग व्यू का जो चार्टिंग यूज करते हैं एंड मेनी ब्रोकर्स विल प्रोवाइड यू जस्ट द स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेडिंग व्यू बट व्हाट वी हैव डन इज वी आर गिविंग यू द फुल ट्रेडिंग व्यू एक्सपीरियंस दिस इज द बेसिकली ट्रेडिंग व्यू का जो पेड एक्सपीरियंस रहता है फॉर विच यू हैव टू पे into thousands monthly basis or in a yearly basis you have to pay 20K 30K very expensive especially newcomers they can't afford it college students or just graduates. So what we have done is we have given this for free. ट्रेडिंग व्यू का आप पूरा सेटअप यूज कर सकते हो इफ यू हैव अ अकाउंट विद अस इट्स फ्री ऑफ चार्ज फॉर यू यू जस्ट नीड टू हैव एन अकाउंट Nicholas, विद अस excuse me. यस यस How many indicators are there in this? इन दिस देयर आर मोर देन 100 इंडिकेटर्स जो पेड वर्जन में अवेलेबल है ना ट्रेडिंग व्यू के आप यूज कर सकते हो Great. आई थिंक अराउंड 120 इंडिकेटर्स मिलते हैं ठीक है सो वी हैव ऑल दोज इंडिकेटर्स Okay, fine. yeah so you can use multiple indicators whatever trading view is giving you in the paid version. Okay, and there are no limitations here. Like you see, फ्री वर्जन में क्या होता है आप एक चार्ट ही देख सकते हो एक टाइम पे. Yes, yes, this is something ओके great. बट सम पीपल लाइक आई सेड दे हैव मल्टीपल ट्रेड्स मेरे को रिलायंस में भी ट्रेड करना है आईसीआईसीआई में भी करना है येस बैंक में भी करना है तो दिस इज वेरी हेल्पफुल दैट टाइम ओपन 3 चार्ट्स एट वंस ओपन 4 चार्ट्स एट वंस नो लिमिटेशंस फ्री वर्जन में कैसा है लिमिटेशंस है बट Nicholas, हमारे someone इसमें is नहीं है. asking question. ओके How many watch lists connected to TradingView? अराउंड 8 watch list Yeah. for now. Okay, so in our current platform, we are providing around 8 watch lists. So similar watch lists will be available on TradingView also. Okay, so 8 you can use and up to, if I'm not wrong, 500 stocks you can put in every watch list. 500 is the Great. limitation right This now. is great. Okay, and I know many people don't use up to 500 also. So No, yeah, मैंने but 5 साल से मेरा वॉच लिस्ट चेंज नहीं किया. correct. Yes, yes. So we have this option, TradingView. You can use it for free. नो लाइक आई सेड लिमिटेशंस नहीं है मल्टीपल इंडिकेटर साथ में डालो कभी कभी फ्री वर्जन में क्या होता है एक ही इंडिकेटर डाल सकते हो एक टाइम पे इसमें जैसे सर ने बताया आरएसआई मैकडी जो यूज होता है काफी लोग वांट टू यूज देन वीवैप फ्री वर्जन में वो नहीं हो पाएगा आप पेड वर्जन में ये सब साथ फ्री में यूज वर्जन कर में दो सकते. से ज्यादा यूज नहीं करता. करेक्ट सो एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग आप ट्रेड भी कर सकते हो इस पे जो इसमें फिर ट्रेल ट्रेल करके दिखा दो ना, जैसे कोई बाई करता है और उसको स्टॉप लॉस ऊपर ले जाना है, स्टॉप लॉस नीचे ले जाना है, कैसे ले जाएगा? एक मिनट ना आई ट्राई टू डू दैट 1 मिनट अभी मार्केट बंद है तो आई थिंक कमोडिटी में करना पड़ेगा लेट्स सी ओके एनीवे वी आई शो यू वन डेमो ऑल्सो ऑफ दैट बट दिस इज हाउ इट इज द फुल ट्रेडिंग व्यू सेटअप बाई सेल भी कर सकते हो आप सिर्फ चार्ट एनालिसिस के लिए नहीं है ओके ट्रेड मैनेजमेंट भी नीचे से ही कर सकते हैं एवरीथिंग इज अवेलेबल आई जस्ट शो यू वंस हाउ इट लुक्स ओके just open the setup once I'll show you all लेट्स से मेरे को गोल्ड पेटल में करना है ओके और मेरा एनालिसिस है कि ये ऐसा डाउन ट्रेंड है मेरे को इधर बाय करना है 13400 पे आई या. कैन जस्ट इजीली राइट क्लिक हियर एंड से आई वांट टू बाय एट दिस प्राइस सो इज दैट इजी राइट आपको अलग से बाय पे क्लिक करके प्राइस डालने की जरूरत नहीं है जो नॉर्मल ऑर्डर रहता है यहाँ पे आप प्राइस डालोगे और सब करो सीधा यहाँ पे राइट क्लिक करके और आपको ये ऊपर नीचे करना है वो भी कर सकते हो इजीली एडजस्टेबल सी ओके. ओके स्टॉप लॉस डालना है स्टॉप लॉस भी डाल सकते हैं ऐसा ड्रैग करके ग्रेट. ओके एक प्रॉफिट भी डाल सकते हैं
अभी करेंटली दिस कमोडिटी में है. स्टॉक्स में यू कैन डू इट इजीली, पुट योर स्टॉप लॉस एंड टारगेट एवरीथिंग नहीं, इट इन इज वन गुड, इट गो. इज गुड, गुड गुड। Okay, so you can easily, just I wanted to show you as a demo कि easily you can on charts only. और उसको बार बार Right. प्राइस डालने की भी जरूरत नहीं है, उसको ड्रैग करके कर सकते हैं। Correct, correct. हम्म। Okay, so it's that easy. I hope सबको समझा है. Okay, so this was the features that we are offering for our clients, and it is well connected with what sir is showing here. And not last but not the least, we are providing these offers to our new clients. Sorry, yeah. So these are the offers. If you all open an account with us before 25th December, you will be eligible to two things. One is if you are taking first 15 trades within 5 days, जो भी आपका brokerage हुआ, it will be given as cashback to your ग्रेट account. डील निकोलस। And let's say आप जैन में भी अगर आप ट्रेड करोगे तो अप टू 1000 रुपीज तक ब्रोकरेज हम कैशबैक दे देंगे. सो यू कैन ग्रेट ग्रेट। प्लीज यूटिलाइज दिस ऑफर. काफी अच्छा ऑफर है. एंड लाइक आई शोड यू ऑलरेडी, जो सर बता रहे हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन अ प्लेटफॉर्म. स्पेशली ट्रेडिंग व्यू इज अ गेम चेंजिंग फीचर एंड प्रोडक्ट. सो प्लीज साइन अप फॉर इट. थैंक यू. एंड वील बी शेयरिंग अ फीडबैक फॉर्म. आप उसमें भी अपना व्यू दे दो. एंड कुछ भी अभी Q&A है, आप सर को डायरेक्टली पूछ सकते हैं. हाँ, चलो, किसको किसको सवाल पूछने, भयंकर भयंकर। जी सर, सुन रहे हैं? ऑडिबल? यस। नाम आपका? टीपू सुल्तान। या गुड नेम? या सुल्तान। यस सुल्तान जी, बोलिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछना चाह रहा हूँ, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग क्या गैम्बलिंग होता है क्या? डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। देखो, दो तरीके के ट्रेडर होते हैं। आज के बाद आप ट्रेडिंग करो ना करो, बट एक सिंपल चीज समझा देता हूं। अगर आपको 5 रुपए की मूवमेंट से पैसा बनाना आता है, राइट, जैसे 2 रुपए ऊपर जाएगा 2 रुपए नीचे जाएगा, समझ रहे हो बात को? ओके। ओके। तो अगर 2 रुपए 4 रुपए का मूवमेंट तुमको समझ में आता है और उसमें से पैसे बना सकते हो, तो तुम ऑप्शन ट्रेडिंग करो। नहीं नहीं, अभी मैं नया हूँ। हम्म। सुन रहा था कि ऑप्शंस इसमें कुछ लेते हैं कुछ नहीं है, और बोली लगा जाती है, वो गैम्बलिंग की तरह होता है। अगर बिना सीखे करोगे तो किसी भी चीज में लॉस होगा। इट इज नॉट अबाउट ऑप्शंस, इट इज अबाउट एवरीथिंग। हर चीज का कोई ठीक है तरीका, ठीक है हर चीज का एक तरीका होता है। आप उसको देखो, सोचो, समझो। निकोलस, एक चीज कर सकते हैं हम, जो फ्रेश ऑप्शन ट्रेडर है ना, उनके लिए एक नेक्स्ट वेबिनार प्लान करो। ओके, चलेगा. राइट, यस. एकदम जीरो ऑप्शन ट्रेड, जिनको कुछ भी नहीं आता है, हम्म. उनके लिए प्लान करो। और मेक श्योर कि मैक्सिमम नंबर को रीच कर पाए। तो हम लोग एकदम लेमन लैंग्वेज में ऑप्शंस करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और कर रहे हैं तो क्या गलती कर रहे हैं वो भी समझ में आ जाए। ओके. ठीक है ना? हम्म. टीपू सुल्तान जी, एक चीज याद रखो, ऑप्शन ट्रेडिंग बिना सीखे करोगे तो लॉस तो 100% ओके। होगा। ऑप्शन में कोई भी ट्रेडिंग करो बिना सीखे, लॉस ही होगा। ठीक है ठीक है सर, क्या ठीक। इंट्राडे में सच में पैसा बन सकता है क्या? हाँ, बनता है यार। नहीं नहीं, ऑप्शन नहीं, नहीं मैं इक्विटी लगा रहा हूँ, इक्विटी और फ्यूचर भी कर लो, जो भी कर लो। सी क्या देखो, इंट्राडे में पैसा बनेगा क्या? देखो, ट्रेडिंग करना है ना तो चार नहीं। लेयर में करो। पहले कैश मार्केट में करो, ठीक है? ओके। अगर कैश ठीक से समझ में आ रहा है तो फ्यूचर मार्केट में करो। अगर फ्यूचर अच्छे से समझ में आ रहा है तो ऑप्शन मार्केट में करो। अगर हमको कैश ही समझ में नहीं आ रहा तो ऑप्शन कहाँ से समझ में आ जाएगा? नहीं सर, लोग बोलते हैं कि इंट्राडे में कुछ नहीं मिलता, छोटे छोटे मूव्स कैप्चर करके कुछ नहीं मिलेगा। ऑप्शन सेलिंग में बड़े बड़े मूव्स होल्डिंग करके 4 5 दिन के लिए होल्डिंग करके कर सकते हैं, इसी में पैसा बनाया बनता देखो, है, और इंट्राडे में पैसा बनता है नहीं बनता बोलते हैं। सब सब बातें इसी सब रिगार्डिंग था करेंगे, जी। बातें सब करेंगे। ओके नो, ओके। अप्लीकेबल मोड पे जो आए, आप 10 दिन समझो, सीखो, उसके बाद देखो आप करके, आप वो जो बोल रहे हैं ना उसको मानना ही बंद कर दो। ठीक है सर। कोई भी चीज एप्लीकेबल मोड पे आएगी तो रिजल्ट आपको समझ, किसी का समझ शक्ति कम होता है, किसी का समझ शक्ति ज्यादा होता है, राइट? इट डिपेंड्स आप किसके साथ डिस्कस कर रहे हो। मेरे साथ करोगे तो मैं बात ही नहीं करूंगा इस मैटर पे। ठीक है सर, थैंक यू सर, उतना ही। चलो, हाँ। एनीथिंग, एनीवन एल्स? किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है, आई एम वेरी ओपन टू गिव आंसर, डोंट वरी अबाउट, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। Hi, sir. Gaurav Agrawal this side. यस, बोलिए। So, first of all,
thank you so much for this insightful session. Though I've missed the initial bit, so I have couple of questions. First Yeah. of all, can we get a recording of this webinar if possible? You can ask to Nicholas. We'll be providing it and we'll update you accordingly of the webinar. Yeah, because I missed the initial half an hour of session. Yes, So that's yes. why. So No, second question definitely is, we are recording and we'll provide with you. We'll yeah, provide you yeah, the same. thank you. Yeah. Thank you. So my question is, I'm doing option buying from last 3 to 4 months. So Yeah. as per SEBI reports, I am also incurring heavy losses. So my question is, an option buyer really can make money? Like most of the people says, only option seller can make money. So I'll give you very straightforward answer. Only buy options when it is a trending market. Correct. Right? Never ever enter in any market where it is not trending, especially in options. See, option है 4 layers. आपको ग्रीक समझ में आने चाहिए. ग्रीक्स का मतलब क्या होता है? ऑप्शन, अगर आप गंदी भाषा में समझाऊंगा तो ऑप्शन इज ऑप्शन व्हेन यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. आर यू गेटिंग मी? Okay. ऑप्शन इज ऑप्शन व्हेन यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. अभी ऑप्शन में आप तब ट्रेड करो जब आपको क्लियरिटी है. Okay. क्लियरिटी मतलब कैसा है कि मेरे को पूरा पूरा ट्रेंड समझ में आ रहा है. थोड़ा भी डाउट है मत करो ऑप्शन ट्रेडिंग. दूसरा फैक्टर है टाइम. टाइम को थीटा बोलते हैं, है ना? अगर आपने जो एक्सपेक्टेशन रखी है कि 1 घंटे में मेरा ये काम हो जाना चाहिए, अगर उस टाइम से वो नहीं हुआ तो भी आप रिटर्न नहीं कमाओगे. आर यू गेटिंग मी? Absolutely, yes. सो आप एक टाइम पीरियड नक्की डिसाइड करो कि अगर मैं ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूं, अगर 15 मिनट, 1 घंटे, 2 मिनट में मेरा, अगर 10 मिनट में अगर ये मेरा अचीव नहीं होता है, आई मस्ट एग्जिट. रीजन बताता हूं. उसमें डीके लगता है. डीके मतलब प्रीमियम इरोड हो जाएगा आपका. Yes, correct. अगर आपको फ्लो ही खेलना है तब मंथली एक्सपायरी में खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसमें डीके जल्दी नहीं लगेगा. इफ यू आर Sir, गोइंग that फॉर also वीकली I tried. ऑप्शंस, Yeah. देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम. करेक्ट करेक्ट सर, इसमें जस्ट एक ऐड ऑन करना चाहूंगा. जैसे आपने बताया कि इसमें जो थीटा लगता है, अब क्या हो रहा है, जैसे आपने बताया अपवर्ड ट्रेंड है. मान लीजिए मैं अपवर्ड ट्रेड में मैंने कॉल बाय किया, मैं अपवर्ड ट्रेड में चल रहा हूँ, और उसमें जो पुल बैक आता है लिक्विडिटी स्विप करने के लिए, तो उस टाइम पे क्या होता है, जितना सपोज आपका 100 रुपीज का प्रीमियम 150 तक गया है, बट वो छोटे से पुल बैक में आपका प्रीमियम जब अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इवन दो द ट्रेंड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, बट वो पुल बैक ही आपका पूरा प्रीमियम खा जाएगा. फिर उसको वो स्ट्रेंथ उसका नहीं रहेगा. एक कैलकुलेशन समझा दो, एक छोटा सा कैलकुलेशन करोगे आज के बाद? यस प्लीज. देखो, जो भी अंडरलाइन एसेट का मूवमेंट होता है ना, जो भी मूव होता है, जैसे 50 रुपए चला, 100 रुपए चला, 30 रुपए चला, राइट? उसमें डेल्टा आता है. डेल्टा समझ में आता है आपको? राइट राइट सर. डेल्टा अगर 0.50 है तो 10 रुपए में प्रीमियम कितना चलना चाहिए? 5 रुपए चलना चाहिए. बिल्कुल. चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? यस यस, बिल्कुल चलना चाहिए. अगर 5 रुपए नहीं चला है, 5 रुपए नहीं चला है, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन सेलर आंख दबा के बैठा है वहां पे. क्योंकि जब फोर्स से चलना चाहिए वो तब तो चल नहीं रहा है. अब जब नहीं चलेगा तो क्या हालत होगी वो प्रीमियम की? आप नॉर्मल कैलकुलेशन मोड पे आ जाओ. अगर 10 पॉइंट में मेरा प्रीमियम 5 पॉइंट नहीं चला है, अब मेरे को टारगेट बढ़ाना नहीं है, घटाने की जरूरत है, राइट? और 5, अभी 10 में 5 चलना चाहिए था. 5 का आधा कितना होता है? 2.5 रुपए होता है. राइट. अगर 2.5 रुपए चला है तो उसको लो ही मत, उसको सेलिंग के बारे में ज्यादा सोचो. ओके ओके. आर यू गेटिंग मी और नॉट? यस यस. सिंपल मैथ्स है, एकदम सिंपल मैथ्स. उसमें चार्ट भी देखने का जरूरत नहीं है. 100 पॉइंट चला है, मेरा 50 पॉइंट चलना चाहिए. 50 पॉइंट नहीं चला है, 25 तो चलना ही चाहिए. 25 नहीं चला है मतलब मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा, मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करूंगा. राइट. करेक्ट. क्लियर? और एक दूसरा मैट्रिक्स, अगर 100 पॉइंट में 50 पॉइंट बढ़ना चाहिए तो 50 पॉइंट नहीं बढ़ा है, राइट? गेटिंग?
तो Yes. पुट के साइड में क्या होना चाहिए? पुट के साइड में 50 पॉइंट घटना चाहिए कि नहीं घटना चाहिए? बिल्कुल घटना चाहिए। अगर 50 से ज्यादा घटा है, मतलब लोग ऑप्शन बाइंग से ज्यादा सेलिंग में कमा रहे होंगे। करेक्ट। पर कॉल सेलिंग में नहीं, पुट सेलिंग करके ज्यादा कमा रहे होंगे। आर यू गेटिंग मी? यस यस करेक्ट। मतलब ये 30 रुपए बढ़ा है और 70 रुपए घट गया, तो किसी ने अगर कॉल बाय किया है और पुट शॉर्ट किया है, तो अल्टीमेटली वो कमा ही रहा होगा, क्योंकि कॉल में भले ही नहीं मिल रहा है, तो पुट में तो ज्यादा पैसा मिल गया ना शॉर्ट करके। समझ रहे हो बात को? राइट राइट राइट। अब मैकेनिज्म समझो। डेल्टा से डिवाइड ही कर देना है सीधा, जितना चला है उसका आधा नहीं चला है, आधा का भी आधा नहीं चला है, मेरे को नहीं लेना है इसको, बस सिंपल। गलती बंद हो जाएगी आपकी। राइट। Yes, correct. Thank you, sir. इज I दैट have one क्लियर? more question, sir. Yeah, या yeah, absolutely, yes, sir. Sir, जैसे हम ऑप्शन कर आपने जैसे मॉर्निंग का मैकेनिज्म बताया, हम ट्रेंड देखते हैं, चैनल्स में चल रहा है, डायरेक्शन या पैटर्न्स देखते हैं, उसमें बहुत लोग कहते हैं कि सपोज हम ओआई डेटा के बेस ऑप्शन चेन के बेसिस पे भी कर सकते हैं, या वेदर वी नीड टू इंक्लूड प्राइस एक्शन अलोंग विद ओआई डेटा, और डू वी नीड टू चेक मतलब सी ओआई सी डेटा सी के ऑप्शन हैव नथिंग टू डू विथ प्राइस एक्शन, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन टाइम। ओके। आप एक चीज देख सकते हो, आज मैं एक क्लियरिटी दे सकता हूं आपको। आप लॉन्ग बिल्डअप के डेटा देखो और शॉर्ट बिल्डअप के डेटा देखो, शॉर्ट कवर के डेटा देखो और लॉन्ग अनवाइंडिंग के डेटा देखो। क्लियर? राइट। ये डेटा समझ में आ गए? लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट ग्रीन है, वॉल्यूम ग्रीन है, बाइंग हो रही है, वो चीज क्लियर है। बट चोरी कैसे पकड़ेंगे? डेल्टा से। हम्म। समझ रहे हो? सब कुछ देखने के बाद भी टाइम तो जा ही रहा है ना। टाइम को कंट्रोल कर सकते हो आप? नहीं। तो राइट। अगर आपको लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है, ओआई ग्रीन दिख रहा है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन भी चलो समझ में आ गया, वो भी दिख रहा है, बट डेल्टा के हिसाब से प्रीमियम ही काम नहीं करेगा। आप चार्ट देख के क्या कर लोगे बताओ मुझे? सर ये भी मैंने ट्राई किया है, बट क्या होता है, द मोमेंट यू एंटर अ ट्रेड, अगर आपने देखा कि आज के डेट में लॉन्ग बिल्डअप है, लेट्स से निफ्टी आउट ऑफ 50 स्टॉक्स, 40 स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्डअप है, ग्रीन दिख रहा है, ओआई डेटा भी पॉजिटिव है, बट द मोमेंट यू एंटर द ट्रेड, उसके बाद विद इन 5 मिनट्स वो डेटा रिवर्स हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, मतलब वो वो इतना डायनामिक है दैट डेटा मैं जस्ट चेंज वही इन तो बोल एवरी रहा हूं, 5। आप डेल्टा से उसको पकड़ पाओगे ना? डेल्टा मैकेनिज्म आपको ऑलमोस्ट सारी कहानी बता देता है, ये बाइंग फेक है कि रियल है। इज दैट क्लियर? राइट राइट, वेरी मच क्लियर सर। ये मैकेनिज्म से ही ऑप्शन काम करता है कि टाइम से उसको रिस्पेक्ट करो और निकल जाओ। राइट राइट। सर आप एक सेमिनार ऐसा और ऑप्शन बाइंग के लिए कुछ हैक्स या कुछ स्ट्रेटजीज, मतलब जैसे आपने आज करेंगे, कवर किया आप वो वो निकोलस जी को बोलना, हम डेफिनेटली बिल्कुल। करेंगे कभी। राइट? यस। नहीं नहीं, रखेंगे ठीक है सर, सर। रखेंगे डेफिनेटली। ऑप्शन के थैंक यू लिए सो खास मच। करना पड़ेगा। मैंने निकोलस जी को बोला, जो लोग ऑप्शन में इंटरेस्टेड है, बहुत लोग लॉस कर रहे हैं यार, कुछ भी पता नहीं है। देखो अभी ये 5 महीने से कर रहे हैं, इनको कैलकुलेशन मैनिपुलेशन ही नहीं समझ में आ रहा है। राइट राइट, अमाउंट आई कैन नॉट से हियर, बट काफी लॉसेस हो गया सर मेरा, दैट्स तो फाइन यार, इसीलिए आई देखो हैव ट्राइड, गलती। बिलीव यू मी, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, एसएमसी आईसीटी, मतलब आप नाम लीजिए, मतलब कौन से पैटर्न सब करके देख लिया, बट नथिंग इज वर्किंग आउट। पैटर्न का ऑप्शन से कुछ लेना देना नहीं है चैंपियन। मैंने आपको इतना अच्छा 1 मिनट का स्टोरी तो समझाया। बिल्कुल बिल्कुल, नाउ इट इज क्लियर। डन डन, राइट? ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। यस। वेलकम वेलकम। आई थिंक महादेव करके किसी ने हैंड या रेस की। या बोलिए बोलिए, महादेव जी बोलिए। हेलो? हेलो, आवाज आ रही है सर? बहुत जोर हेलो। से आ रही है, बोलिए। हाँ सर, जो ऑप्शन ट्रेडिंग है सर, वो स्टॉक में करना चाहिए या इंडेक्स में करना चाहिए, कौन सा बेटर रहेगा? पहले आप मेरे को बताओ, ऑप्शन ट्रेडिंग करना क्यों है आप? वही साइड इनकम, पैसिव इनकम। तो ऑप्शन से ही बनता है साइड इनकम। ऑप्शन से क्विक बनता है ना सर, क्या? मतलब थोड़ा जल्दी होता है ऐसा। इस जल्दी के चक्कर में कितने पैसे उड़ाओगे? नहीं, मेरा भी सर स्टार्टिंग है, अभी सीख रहा हूँ सब, अभी तक ट्राई नहीं किया, लेकिन सीख रहा हूँ। देखो एक सिंपल तरीका बताता हूं, आपको शायद अच्छा ना लगे। हाँ कोई भी स्टॉक है ना, स्टॉक कैश मार्केट में एक बार आप 5-10 दिन, 6-10-12 दिन ट्रेड करके देखो। हाँ राइट? हाँ अगर उससे पैसे बन जाते हैं तो हाँ। आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना।
अच्छा अगर नहीं बन रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग भूल से भी मत करना, ओके क्योंकि वो बोलते हैं ना, देखो अगर आपको तालाब में तैरना आता है ना, हाँ तो आप नदी में तैर लोगे, यस सर बट अगर आप डायरेक्ट नदी में डूबोगे तो हाँ डूब जाएंगे हाँ हाँ, और लोग तो समंदर में जा रहे हैं सीधा तालाब को छोड़ के। हाँ क्लियर? हाँ यस सर यस यस बेटर स्टार्ट विथ कैश मार्केट फर्स्ट, देन हाँ फ्यूचर, देन ऑप्शन। ठीक है सॉरी समझ हेमंत जी, मैं आपको कट कर रहा हूँ हम्म। कि जो भी आप लोग का फीडबैक है, ज्यादा टाइम नहीं बचा, एक्चुअली मीटिंग खत्म हो यस यस। जाएगा। हाँ तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस, ओके, एंड वी विल अरेंज अनदर सेशन, तो उसमें भी आप सर को पूछ सकते हो फिर से आपके डाउट्स, ओके। एंड हमने फीडबैक फॉर्म दिया है, प्लीज आप फिल कर देना। उसमें क्लियरली लिख देना जिन लोग को ऑप्शंस का चाहिए वेबिनार, प्लीज उसमें फीडबैक फिल कर दो ताकि हम अरेंज कर पाए सेशन के लिए। यस, श्योर श्योर श्योर। यस, तो वील हैव टू क्लोज द मीटिंग नाउ क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। बट डेफिनेटली दूसरे अलग सेशन में अगेन आपका जो भी डाउट्स थे आप पूछ सकते हो फिर से सर को। और एक, आप लोगों को अगर प्राइस एक्शन सीखना है, कुछ भी सीखना है, तो मेरी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बुक है, राइट? आप द स्मार्ट ट्रेडर्स प्लेबुक करके एक बुक है, उसको परचेज कर लो। उसमें बहुत वैल्यू डाली है मैंने, मेरा जो भी एक्सपीरियंस किया है लास्ट के 5-6 पेजेस में। आप वहां से भी जाके बाई कर सकते हो, देख सकते हो क्या है मीन रिवर्सल पैटर्न को कैसे एक्यूरेटली यूज कर सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड कब फेवरेबल रखना चाहिए, कब इंडिकेटर को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, वो मैंने सब डाल दिया है उसके अंदर, राइट? आपको ये अमेजोन पे मिल जाएगी, और मैंने 7 कंट्रीज में पब्लिश की है। आपको 7 कंट्रीज में जाने की जरूरत नहीं, आप इंडिया के गूगल प्ले स्टोर से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ, ठीक है? इट इज अप टू यू। अगर आपको सीखना हो तो आप बुक से भी सीख सकते हो, पर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बाद में बुक लिखेंगे, पहले ये एक बार प्राइस एक्शन पैटर्न समझ लो, और ऑप्शन के ऊपर अलग से सेशन ले लेंगे, ठीक है निकोलस? यस सर, यस सर। सर आप भी अपने एंड से प्लीज क्लाइंट्स को थोड़ा इनकरेज कीजिए अकाउंट ओपन नहीं करने नहीं, डेफिनेटली। और आप, ये मेरे को इनका ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, ट्रेडिंग व्यू वाला यार। ट्रेडिंग व्यू बहुत पैसा मांगता है। में। सही में मांगता है तो मांगता है। मैंने खुद अभी 1270 रुपये भरे। अच्छा। हेमंत मेरे जी को मजाक चाहिए कर रहे एक्चुअली, हैं, मैं ऐसा मैं कुछ है यूएस नहीं। मार्केट में भी ट्रेड करता हूं, तो मुझे चाहिए, ओके। राइट? बट अच्छा है, अच्छा लगा मेरे को। ऑप्शन ट्रेडिंग के डेटा और थोड़े अपग्रेड कर दो और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि बहुत अवेयरनेस चाहिए इन लोगों को। और जो लिंक भेजा है चैट में हमने दिया है, उससे आप लोग को ओपन करवाना पड़ेगा अकाउंट, तो उससे आप लोग को ऑफर मिलेगा। चैट में हमने पेस्ट किया है, फीडबैक फॉर्म का भी लिंक है और अकाउंट ओपनिंग का भी लिंक है, दोनों अवेलेबल है, तो प्लीज आप देख लीजिए एक बार। श्योर 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 जिससे मिस हुआ है प्लीज यू कैन चेक अगेन वंस। श्योर। देखो, आप सपोर्ट करो इनको, ये लोग बहुत कुछ कर रहे हैं अभी आगे, है ना? अभी और हम लोग अलाइन करेंगे, बट अगर आप अलाइन ही नहीं रहोगे तो हम कैसे अलाइन होंगे? एंड हमारा जो टीम है आप लोग को रीच आउट करेगा, whoever has joined this webinar, so that we can add you all again in the next webinar as well. श्योर I श्योर श्योर think श्योर। many people enjoyed what sir has shared today, the insights, and more people are waiting for the options webinar also. ना, So श्योर please, श्योर। we will reach out to you guys again. Then you can connect with us in the next webinar as well. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Yes. थैंक यू एवरीवन। I'll just give them 30 seconds. अगर लिंक नहीं मिला तो आप अभी भी चेक कर सकते हो चैट में, and then we will close the webinar. यस, श्योर Again, श्योर। thank you चलो, Hemant sir again, once again for the थैंक यू सो wonderful मच, थैंक session. यू सो मच एवरीवन, एंड बी अवेयर, देर इज लॉट ऑफ गोइंग ऑन, बहुत कुछ चल रहा है, बट अवेयर रहो, सोच के समझ के करो, ठीक है? कुछ नहीं आता है तो पूछ लो निकोलस जी को, यार किसी को भी पूछ लो, बट सोच के करो जो भी कुछ, ठीक है? Yes. चलो, थैंक यू। Okay. Thank you guys. Thank you again, once again, everyone for joining. थैंक यू।